Good morning and Assalamu alaikum, everyone. I warmly welcome all of you to the episode number 10 of College Research Committee's series of webinars on fundamentals of research, the topic for which is systematic review and meta-analysis. My name is Mohammad Umar Afridi, and I am a second-year medical student and the Assistant Director of Team Coordination in Students' Research Committee, and I will be your moderator for today. We are thrilled to have you all here and are excited to dive into this crucial topic with our esteemed speaker, Dr. Shumaila Javed. This is the 10th webinar of our webinar series and pre-conference activities leading up to the 3rd International Research Conference by SRC-KMC. It results from a collaborative effort between the Postgraduate Medical Institute and College Research Committee. This event was made possible through the dedicated efforts of Dr. Rabina, Chairperson CRC, Dr. Iqbal Haider, Chairperson of Research Committee, and Dr. Jahan Hassan, Chairperson SRC. Additionally, it aligns with the vision of our Honorable Dean of Khyber Medical College, Professor Dr. Mahmood Aurangzeb, who champions the advancement of medical education and research. Before we begin, I would like to go over a few basic rules so that we may have a smooth proceeding and to help you have the best experience possible. Number one, to receive CME accreditation, please ensure that you attend the entirety of the webinar. Our team will be monitoring attendance and we will be sharing a feedback form at the end. Please make sure to fill that out. You are all instructed to join with your real names for the purpose of certificate awarding. Number two, we strive to maintain a respectful and polite environment. Please be courteous and professional in your interaction. Number three, ensure that you have a stable and secure internet connection, and it is preferable to use laptop or desktop for the best experience. Number four, our team will keep your microphone muted when listening to the session to minimize the background noise. Number five, there will be a question answer session at the end, and you are requested to speak your questions out, but before which, kindly use the raise hand option at the bottom. Alternatively, you can simply ask your question in the chat box as a direct message to the moderator. We will address them all one at a time. Finally, the webinar will be recorded for future reference. By attending, you consent to being recorded. Now, it is my great pleasure to introduce our conversant speaker, Dr. Shumaila Javed. Dr. Shumaila is a consultant in the field of pulmonology and an MHPE scholar at Khyber Medical University, Peshawar. Apart from being a gold medalist at her medical college, KGMC, Dr. Shumaila is an avid researcher with 2 of her researches being awarded grants. Not only that, but she was also the winner of last year's National Respiratory Research Award. Dr. Shumaila Javed, welcome and thank you for joining us today. Without further ado, I will now hand over the session to the speaker. Dr. Shumaila, the floor is yours. Zugami. Assalamu alaikum. Walaikum assalam, ma'am. So thank you so much, Omar. ये इतना introduction, I never thought I'll ever deserve it because I consider myself a learner अभी तक. तो जो कुछ थोड़ा बहुत सीखा है, I'll make sure कि we make it effective for the students like you जो इतना interest show कर रहे हैं at this very level. I don't think हम इतना enthusiastic कभी थे अपने like I graduated in 2016 and you guys are 10-20 times more better than us to be interested in all these medical education and research activities or itna enthusiastically because I have been attending all of your webinars. So like this is a very बहुत एक अच्छा step था
from the part of organizers and as well as from the part of जो attend कर रहे हैं इतने enthusiastically. So Yeah. today we have chosen the topic of systematic review and meta-analysis, which is very एक बहुत vital या integral part होता है research का. बल्कि if we say कि evidence based medicine अगर आप practice करना चाह रहे हैं ever in your life, तो pyramid के सबसे ऊपर अगर कोई चीज withstand करती है तो that is systematic review and meta-analysis. Some of you might have experienced, खुद भी आपने शायद लिखा होगा, अगर लिखा नहीं भी होगा तो डॉक्टर शुमाइला, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, प्लीज काइंडली दोबारा से रिपीट कर दें। ऐसे आया होगा कि किसी आपके किसी टीचर ने, हेलो, is it clear now? Yes, ma'am. It's clear now. Am I audible? Yes, ma'am. Acha. So we'll begin the session. We'll begin the session and I'll display the slides just in case if we have any issues. So we have the backup slides, then Umar will share it and we can proceed with the session. So the learning objectives for we have kept them very straight इसके पे हुआ है, और अगर हम करना चाहें तो how can we make a base for the systematic review and meta analysis, and then how आप किसी article को systematic review या meta analysis में include करते वक्त क्या consider करके देखेंगे. So just what, why and when of the systematic review and then a step-by-step guide. I have tried to keep it as simple and as understandable as possible. So this is a metaphoric example for you all. Since our childhood, ये ants वाली example हर किसी ने सुनी होगी. We have been hearing कि unity अगर सीखनी है तो आप इन चीजों से सीखें. लेकिन how this unity and how ये ants की example यहाँ पर fit हो रही है. Power, जब आप united होते हैं, you are powerful. So ये तो एक understood fact है. But ये सिस्टमेटिक रिव्यू का इस पावर के साथ क्या कनेक्शन है? एक इंडिविजुअल स्टडी, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने स्टडी की, लेट्स से 100 साल पहले चले जाते हैं, स्मोकिंग कॉजेस कैंसर. अब एक बंदे की फाइंडिंग इतनी पावरफुल शायद नहीं होगी, लेकिन अगर 100 of them end up with कंबाइन कर दें, this is now a very powerful tool. ये बात शेयर करने के लिए या withstand करने के लिए that smoking causes cancer, by now it's an established fact. This is just example के तौर पे. So systematic review is actually आप जितने भी empirical evidences हैं, you are combining them, but you are making sure they are fitting a certain eligibility criteria. ऐसा नहीं है कि सब कुछ मिक्स करके सिस्टमैटिक रिव्यू बनाना है. नो, यू हैव टू हैव सम स्टैंडर्ड. देयर शुड बी. अब किसी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं या किसी भी कोर्स में, तो उसका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है. आपके इस वेबिनार का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, आप पीजी हैं, आप हाउस ऑफिसर हैं, तो आप अटेंड कर सकते हैं. इट्स गोइंग टू मेक सम सेंस टू यू. बट अब अगर किसी रैंडम स्कूल के बच्चे को आप ये वेबिनार अटेंड कराए, उसके पल्ले कुछ नहीं पढ़ना. सो दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज वेरी मच नेसेसरी. आप रैंडम आर्टिकल इंक्लूड नहीं कर सकते. यू हैव टू प्री डिसाइड अ क्राइटेरिया कि आप कर क्या रहे हैं और आप कर क्यों रहे हैं. सो यू हैव टू आंसर अ सर्टेन रिसर्च क्वेश्चन. वो रिसर्च क्वेश्चन आपको चैनलाइज करके सिस्टमैटिक रिव्यू की तरफ लेके जाएगा. सो दिस सिस्टमैटिक रिव्यू बेसिकली बिगेन एजेस अगो. शुरू एस्ट्रोनॉमर्स ने किया इसको यूज करना, मतलब ये कॉन्सेप्ट लाना कि बहुत सारी लोगों की फाइंडिंग्स कंबाइन करके हम एक स्ट्रॉन्ग फाइंडिंग, वी कैन एंड अप विद अ स्ट्रॉन्ग फाइंडिंग, और उस स्ट्रॉन्ग फाइंडिंग को हम फर्दर यूज कर सकते हैं. फिर उसके बाद साइकोलॉजी, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते करते तकरीबन लाइक 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी आगे जाते जाते
तब कॉन्सेप्ट बिगिन हुआ, बट व्हेन वी एंडेड अप इन 1970s टू मिड 1980s, सिस्टमेटिक रिव्यू एक्चुअली केव इनटू इट्स शेप, जिस शेप में ये अभी है। इसका जो बेस्ट पॉसिबल वर्जन, अब तो खैर बेस्ट पॉसिबल वर्जन अब है, लेकिन जो नियर पॉसिबल वर्जन इसका था तो दैट वाज बैक इन 1980s, और इनिशियली इट बिगेन फ्रॉम अ सिस्टमेटिक रिव्यू ऑन स्कर्वी. So you can see systematic review initially, if you see the trend 1995 में देख लें, ये जनरल पब्लिकेशंस है, मेटा एनालिसिस जो हमारे पास 1995 से 2015 तक हुई हैं. यू कैन सी स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये टॉप 10 कंट्रीज हैं वर्ल्ड के जो पब्लिकेशन के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं. बट यू कैन सी कि ये जो 2013 से 15 का एरा है, इसमें द चाइना, इनिशियली चाइना इतना कोई ज्यादा ऊपर नहीं था, यूएस की सबसे ज्यादा पब्लिकेशंस हैं, लेकिन इस एरा में चाइना ने सर्च किया, एंड देन ये सिस्टमेटिक रिव्यूज की सिर्फ ये उनका ग्राफ है. तो यू कैन सी दैट हाउ दे हैव लाइक सिस्टमेटिक रिव्यू इनिशियली देख लें उसका लेवल क्या है, और फिर अब देख लें कि कितने ज्यादा हो गए हैं. इनिशियली इतना कोई इनको, दे वर नॉट दैट वेल अंडरस्टूड, वेल टेकन, बट नाउ एवरीवन नोज देयर इंपॉर्टेंस इन द एविडेंस बेस्ड मेडिसिन. Here you can see वो meta analysis का था, and same is for systematic reviews. Here you can see US is on the top and China is on the second, and then we have UK and the rest of the top 10 countries. और unfortunately we are nowhere. पाकिस्तान इसमें कहीं भी नहीं है, बल्कि अगर डॉक्टर का webinar किसी ने attend किया हो, उसमें ये जो प्लेजराइज्ड कंटेंट होता है उसमें अलबत्ता पाकिस्तान ने टॉप जरूर किया था. जो आर्टिकल्स रिट्रैक्ट हो जाते हैं तो उसमें हम कहीं टॉप 5 में स्टैंड कर रहे थे. यू गाइस वुड हैव गॉन थ्रू इट. सो सिस्टमेटिक रिव्यू और ट्रेडिशनल बेसिकली स्ट्रेटजी में होता है. जब आप सिस्टमेटिक रिव्यू कर रहे हैं, यू हैव अ क्रिस्प research strategy. You know what you are going to do. You have eligibility criteria. आपको अपनी methodology पता होती है, आपको आउटकम भी पता हो, मतलब आउटकम आप टारगेट क्या करना चाह रहे हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, you know that. सेम ट्रेडिशनल रिव्यू क्या है, आपने एक चीज रिव्यू कर लिया बट आप क्लियर ही नहीं थे कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आप क्यों करना, आप you were not intending any outcome, like आपका कोई प्री स्पेसिफाइड ना क्राइटेरिया था. आप अपने कोई लिटरेचर आप किसी टॉपिक के लिए देख रहे होते, फॉर एग्जांपल एक प्रेजेंटेशन है या कोई मेरा एग्जाम है, मैंने सीयूपीडी पढ़नी है, एक जगह से देख लो, दूसरे से देख लो. अब रिव्यू तो मैं करती जा रही हूँ, बहुत सारी जगहों से मैंने सीयूपीडी पढ़ ली, लेकिन कुछ किया तो मैंने नहीं ना. मैंने ये देखा कि मैं कौन से टाइप की स्टडी देख रही हूँ, ना उनकी कोई हुई, कुछ नहीं हुआ, बिकॉज मैं श्योर ही नहीं थी. देयर वाज नो क्राइटेरिया बिफोर हैंड, राइट. हम डेटा नहीं होता था ना, ये दुनिया इतनी एडवांस थी, मेडलाइन और ये गूगल स्कॉलर और ये सारी चीजें होती, तो इतना वास्ट डाटा नहीं था. और इलेक्ट्रॉनिक डाटा तो बिल्कुल भी नहीं होता था. बुक्स होती थी, लाइब्रेरीज होती थी, तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ती थी. बहुत लिमिटेड डाटा में क्या सिस्टमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस कोई करता. सो जैसे जैसे लिटरेचर आप इस सारी चीजों को कंबाइन भी तो करना है ना. ये चीजें अगर फ्लरिश हुई हैं तो दैट वाज इन कोविड एरा. इवन रिसर्च भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की, क्योंकि कोविड एक न्यू चीज थी, यू कैन से. उस टाइम तो किसी ने उसकी प्रिवेंशन पे रिसर्च कर डाली, किसी ने वैक्सीन पे रिसर्च कर डाली, फिर उन सबको कंबाइन भी करना था. तो आपको एक चीज, एक प्लेटफॉर्म पे चीज लाने के लिए सिस्टमेटिक रिव्यू या लिटरेचर रिव्यू की जरूरत पड़ती है, बिकॉज यू हैव टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट. उसको एक एविडेंस बनाना होता है. तो इसलिए, और फिर फर्दर लिमिटेशंस डिफाइन करके आगे के रिसर्चर्स को भी बताना होता है कि आप यहाँ तक तो पहुंच गए, आगे आपने ऐसे जाना है, ये चीज डेफिशिएंट है फॉर एग्जांपल. सो आप इस चीज पे रिसर्च करके यू गाइस कैन टेक अस अहेड, क्योंकि हर एस्पेक्ट को जरूरी नहीं है कि हर किसी ने कवर किया हो. मे बी कहीं डेफिशिएंसी पैथोजेनेसिस में हो, कहीं डेफिशिएंसी मेथड किसी भी और एस्पेक्ट में हो. तो जो चीज डेफिशिएंट है, इट्स बेटर इफ आगे न्यू फर्दर रिसर्च उस टॉपिक पे हम कर सके. सो दिस इज, ये जो हम पिरामिड की बात कर रहे हैं, इफ यू कैन सी,
जो बेस ऑफ द पिरामिड है, इस पे वो सारी चीजें फॉल करती हैं जो एनिमल मॉडल पे हम स्टडीज करते हैं या सिमुलेशन स्टडीज होती है, यानी नॉन ह्यूमन स्टडीज बेसिकली। फिर उसके बाद आपकी केस रिपोर्ट आ जाती है, क्योंकि केस रिपोर्ट या केस सीरीज जो पेशेंट आप देखते हैं वही रिपोर्ट कर डालते हैं। जैसे न्यूज में इधर से इधर करना, मतलब ऐसी कोई खास इंटरवेंशन नहीं की, जस्ट ऑब्जर्विंग। आपने कोई कोहार्ट ले लिया फॉर एग्जांपल, आप देख रहे थे सीओपीडी, मतलब एक फिनोमेना, मतलब you have made it official or you have written it probably properly. Then we have experimental studies, अगर ऊपर हम देखें तो we have randomized and non-randomized control trial, जहाँ पे आप खुद इंटरवेंशन कर रहे होते हैं, and then उसके भी ऊपर we have systematic reviews and meta analysis, जहाँ पे आप critical appraisal कर रहे होते हैं। अब ये यहाँ क्रिटिकल का मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये हम फॉर द गुड कर रहे हैं, यानी हम वी वांट टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट। यहाँ कोई पर्सनल चीजें इन्वॉल्व नहीं होती कि जस्ट बिकॉज इस XYZ बंदे ने कोई रिसर्च कर दी तो आई एम जस्ट नो। ये यहाँ हम बिल्कुल, ये एक प्रोफेशनल तरीका है और इसका एक प्री डिफाइंड प्रोटोकॉल होता है, और उसके अकॉर्डिंगली वी हैव टू डू द सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। सो एविडेंस हर चीज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस का भी हमने पिरामिड पे देखा, बिल्कुल टॉप मोस्ट एविडेंस है। तो ये टॉप मोस्ट एविडेंस क्यों है? बिकॉज इसमें बायस नहीं होता। इसके अलावा आप ये, मतलब इसकी जो क्वालिटी है, जितना टेस्टिंग आप इसको, अभी हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ये जितना टेस्ट हो जाएगा आफ्टर दिस मच टेस्टिंग, दिस इज द टॉप क्वालिटी थिंग जो कि आप किसी ऑडियंस को देख रहे हैं। तो आप ये जब वंस सिस्टमैटिक रिव्यू इज डन किसी भी टॉपिक पे, दिस इज आपका जो प्रोडक्ट होता है वो रेडी होता है। अब आप इसको, कोई प्रैक्टिशनर है वो इससे गाइडेंस ले सकता है, मेकर्स फॉर द प्रैक्टिशनर्स। सो इसलिए इसको टॉप मोस्ट एविडेंस कहते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स गुड क्वालिटी, लेस बायस एंड बीइंग मोर कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ गुड क्वालिटी एविडेंस। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट भी होता है। ट्रांसपेरेंट कैसे होता है? क्योंकि हमने बड़े सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फिल्टर्स लगाए हैं, स्टडी उससे पास हो के आखिर में सेलेक्ट होके हमारे सिस्टमैटिक रिव्यू में जाएगी। फिर उसके बाद भी जो चेकलिस्ट होती है प्रिज्मा की, वो प्री डिफाइंड होती है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी होगी, मेरी मर्जी का ऑथर है तो उसके लिए मैं कोई क्राइटेरिया अप्लाई ना करूं, और कोई मेरा कोई और दूसरा XYZ ऑथर है उसके लिए मैं क्राइटेरिया, ऐसा नहीं है। सारे रिसर्चर्स पे, सारे आर्टिकल्स पे एक ही किस्म का क्राइटेरिया अप्लाई होगा। सो दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ वेरी ट्रांसपेरेंट आउटकम। तो आपको यहाँ पे एक होता है वकील और एक होता है जज या जूरी जो हमारी होती है। तो आपको यहाँ किसी ऑथर का या किसी आर्टिकल का वकील नहीं बनना। वी आर नॉट डिफेंडिंग एनीवन। ना हम ये कह रहे हैं कि हाँ जी इसने अब ड्यू क्रेडिट देना इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन यहाँ ना सिस्टमैटिक रिव्यू का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी की तारीफें करने लगूं या किसी को क्रिटिकली अप्रेज, मतलब तनकीद का निशाना बनाने लगूं। वी आर बेसिकली हियर एज अ जज। आपने एक फेयर जजमेंट देनी है एक आर्टिकल के अकॉर्डिंगली। जैसे जज मतलब हमारे लॉज होते हैं ना, उन लॉज के अकॉर्डिंगली वो जजमेंट पास करते हैं, तो फेयर अनफेयर उसके अकॉर्डिंगली होता है। ऐसा तो नहीं है कि उनकी अपनी मर्जी होती है, जिस दिन दिल किया सजा दे दी, जिस दिन दिल किया ना दी। तो दिस इज नॉट दैट वे। एक प्री डिफाइंड प्रोटोकॉल है, आपने जज करके और सिस्टमैटिक रिव्यू करना है। सो लॉयर अप्रोच यानी डिफेंसिव अप्रोच नहीं, आपने लूप होल्स नहीं छोड़ते किसी आर्टिकल के लिए या किसी ऑथर के लिए, ठीक है। So at the end, you are giving a precursor to the policy maker and to the practitioner. Policy makers, अगर आपने किसी ऐसे पब्लिक हेल्थ के टॉपिक पे सिस्टमेटिक रिव्यू कर डाला है, फॉर एग्जांपल कोई इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, आपने देख लिया दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अब आप पॉलिसी मेकर्स को बताएं कि जी नहीं, आप प्लीज पॉलिसी रिव्यू करें। ई सिगरेट्स की बहुत अच्छी एग्जांपल हम यहाँ कोट कर सकते हैं। ई सिगरेट्स कुछ महीने पहले हमारी पार्लियामेंट लेवल पे ई सिगरेट्स को, ये जो जगह जगह आपने देखा होगा वैपिंग शॉप्स होती हैं,
तो उनको क्लीन चिट मिल गई थी बिकॉज नो वन न्यू के ई सिगरेट इज इक्विवेलेंट आपका जो नॉर्मल सिगरेट होता है, दोनों सेम ही चीजें हैं, सिर्फ शक्ल डिफरेंट है। सेम निकोटीन आपको मिल रही है ई सिगरेट से भी, जो कि आपको दूसरी जो आपकी कन्वेंशनल सिगरेट है उधर से मिल रही है। तो फिर जब उसके बाद उस पर थोड़ा सा एविडेंस जनरेट हुआ, फिर पॉलिसी मेकर्स को जाके बताया गया कि नहीं, ई सिगरेट्स को आप ऐसी क्लीन चिट नहीं दे सकते। ये एफडीए अप्रूव्ड, इसको ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा था जैसे ये कोई स्मोकिंग सीजेशन के लिए चीज है, लेकिन एफडीए ने ऐसा कुछ अप्रूव नहीं किया। तो देन पॉलिसी मेकर्स रिव्यूड देयर डिसीजंस। तो इसीलिए इसी तरह सिस्टमेटिक रिव्यू करके आप ये जो पब्लिक हेल्थ इश्यूज होते हैं उनको हाईलाइट कर सकते हैं, या अगर कोई क्लिनिकल इशू है तो प्रैक्टिशनर्स के लिए वी कैन जनरेट एविडेंस। अब ये एक लिटरेचर, ये जो बड़ा सर्कल है, दिस इज शोइंग यू के लिटरेचर बहुत सारा होता है। आप एक टॉपिक लिखें, इंटरनेट आपको बड़ा कुछ इस पे जनरेट करके देगा, इतनी सारे रिसर्चेस। फिर उससे उसको थोड़ा हम रिफाइन करते हैं तो सिस्टमेटिक रिव्यू, उसको और भी रिफाइन करते हैं तो मेटा एनालिसिस बन जाती है। तो बेसिकली रिफाइन, ये आप रिफाइन करते जाएं तो आप बड़े से छोटे सर्कल में जाते जाते हैं। Here we can give एक एग्जाम्पल, सिस्टमेटिक रिव्यू। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और उसका एक बहुत बड़ा शेल्फ है जिसपे बड़ी सारी कुक बुक्स पड़ी हैं, और कुक बुक्स पड़ी हैं और इस सारी बुक्स में कुकीज बनाने की रेसिपी है। अब आपने ये सारी रेसिपीज, हर जितनी भी कुक बुक्स है, हर शेफ की अलग अलग रेसिपी होगी, हर शेफ ने अपना कोई कोई नई इनोवेशन शायद की होगी, किसी ने एक तरीके से रेसिपी फॉलो की होगी, किसी ने दूसरी तरीके से, किसी किसी की कोई किसी ने बेकिंग का तरीका यूज किया होगा, किसी ने कोई दूसरा तरीका यूज किया होगा। तो ये सारी रेसिपीज कंबाइन करके और आपने वो सब कुछ समराइज करके एक जगह उसको, लाइक यू हैव गैदर्ड इट ऑन वन प्लेटफॉर्म, दिस इज वो जो कॉम्प्रिहेंसिव कुक बुक आपने बनाई, दैट इज दैट सिस्टमैटिक रिव्यू। और फिर मेटा एनालिसिस में आपने ये भी बता दिया कि अच्छा, हर रेसिपी में फॉर एग्जाम्पल आपने हर मेथड को एनालाइज किया, आपने ऑप्टिमल इंग्रेडिएंट्स भी बताया कि बेस्ट तरीका ये है, ऑप्टिमल टेम्परेचर ये है, ऑप्टिमल टाइम ये है, मतलब आपने उस चीज को और भी रिफाइन कर दिया। सो वील इन थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा इन दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है, बट दिस इज जस्ट टू एग्जाम्पलीफाई, आप मेटाफर जैसे हम देते हैं। अब सिस्टमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस एट सम पॉइंट ओवरलैप ऐसे करते हैं कि मेटा एनालिसिस स्टेप्स दोनों के सेम होते हैं, मेटा एनालिसिस सिर्फ थोड़ी और रिफाइन हो जाती है आगे जाके स्टेटिस्टिकली। स्टेटिस्टिक्स जो है वो मेटा एनालिसिस में ज्यादा इन्वॉल्व है एज कम्पेयर टू सिस्टमेटिक रिव्यू, वहां पे चीजें क्वांटिफाई हो जाती है। अब स्टेप बाय स्टेप जाके इसको देखते हैं कि करना कैसे होता है। सो दीज आर बेसिकली, ये कोई सिंपल से ऐसे कोई स्टैंडर्ड इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है या स्टेप के बस यही जी स्टेप है। खैर, आप इसको ब्रेकअप करके ज्यादा या कम भी कर सकते हैं, बट टू कीप इट सिंपल, फर्स्ट यू हैव टू फॉर्मुलेट योर रिसर्च क्वेश्चन, लाइक यू हैव टू बी श्योर आप करना क्या रहे हैं। फिर आपने खुद उस पर थोड़ी सी रिसर्च, यू एक्सट्रैक्ट द डेटा, देन यू अप्रेज द डेटा, और उसके बाद फिर आप मेटा एनालिसिस या सिस्टमैटिक रिव्यू करते हैं, और फिर उसके बाद अल्टीमेटली यू एंड अप प्रिपेयरिंग अ स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट। सो सेम स्टेप्स है, उनको थोड़ा ज्यादा रिफाइन कर दिया है। पहले रिसर्च क्वेश्चन आपने आइडेंटिफाई किया, बट यू हैव टू मेक श्योर कि रिसर्च क्वेश्चन के साथ साथ यू आर डिफाइनिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड यू नो दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू। ऐसे नहीं है रिसर्च क्वेश्चन आपने बड़ा सोच समझ के डिफाइन करना होता है। ऐसा रिसर्च क्वेश्चन आपका होना चाहिए जो लाइक यू नो कि इसका, ये रिसर्च करने का कोई फायदा भी है। अब फॉर एग्जांपल कोई आउटडेटेड किस्म की रिसर्च अगर आप करना चाह भी रहे हैं तो आप वो करके व्हाट्स द रैशनल बिहाइंड इट। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका क्वेश्चन बहुत प्रॉपर हो। देन यू हैव टू, आप रेलेवेंट रिसर्च कैसे करेंगे उसके लिए आपके पास सोर्सेज होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कौन से डेटाबेसेस आप सर्च कर रहे हैं। फिर उसके बाद कर रहे हैं और आपने फिल्टर कैसे करना है सर्च, बेसिकली उस इंटरप्रेट सबसे आखिर में होगा और फिर कहीं जाके आप उसको कुछ लिख कर और पब्लिश करेंगे। तो ये भी सेम टू सेम वैसा ही फ्लो चार्ट है, लेकिन थोड़ा ज्यादा इलेबोरेटेड हो गया है। एंड नाउ
we will take all these steps one by one. ये एक क्रिटिक रिव्यू का कि उन्होंने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, जैसे एक बर्ड आई व्यू होता है ना, तो दिस इज दैट. सो वी विल गो थ्रू ऑल दीज स्टेप्स वन बाय वन. ये एक एग्जांपल है आर्टिकल की. बिफोर आई decode those steps, vibration and bubbles ऐसे ही random सा आर्टिकल है. सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ हेलीकॉप्टर्स किसी जर्नल से लिया गया है. दिस इज अ रिव्यू आर्टिकल. अब इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, यू कैन से सी, a systematic search of the literature was conducted to identify articles investigating vibration and bubble generation during helicopter retrieval of the divers. अब इन्होंने जो databases consider की हैं, they were Medline. इसमें हमारी Medline सबसे बेस्ट डेटाबेस है. इसके अलावा और भी बड़ी सारी डेटाबेसेस हैं जिसमें वेब ऑफ साइंस, कॉक्रेन, एम्बेस, आपके जो गूगल स्कॉलर और ये सारे सर्च इंजन्स, ये सब आप यूज करके और मेश टर्म्स आप यूज करके सिस्टमेटिक रिव्यूज करते हैं. और फिर नीचे इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि हमने प्रिज्मा गाइडलाइंस फॉलो की थी. ठीक है. फिर उसके बाद उन्होंने ये एक ब्रेकअप दिया हुआ है, हाउ दे हैव इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड आर्टिकल. यू कैन सी सबसे ऊपर आइडेंटिफिकेशन का स्टेप है, फिर स्क्रीन किया है, फिर एलिजिबिलिटी अप्लाई की है और आखिर में उनको इंक्लूड किया है. तो ये 4 मेजर चीजें हैं जिससे उन्होंने आर्टिकल्स को स्क्रीन करके आखिर तक लेकर गए हैं. तो अब हम रिसर्च क्वेश्चन बना के देखते हैं कि कैसे हमने रिसर्च क्वेश्चन बनाना है. फर्स्ट स्टेप वाज रिसर्च क्वेश्चन बनाना ना. तो रिसर्च क्वेश्चन आप बनाते हैं, यू हैव टू फॉलो ये रूल्स, PICO. ये एक इजी वे आउट हो जाएगा. P इज फॉर पेशेंट या आपकी पॉपुलेशन. जरूरी नहीं है कि आपकी हर रिसर्च पेशेंट्स पे हो, लेकिन जरूरी ये भी नहीं है कि आपकी हर रिसर्च पॉपुलेशन पे हो. ये डिपेंड करता है आपकी सेटिंग क्या है. आप पॉपुलेशन नॉर्मल लोगों में करना चाह रहे हैं, अब नॉर्मल में, तो P इज फॉर दैट. I इज फॉर योर इंटरवेंशन या इशू, जो मसला आपका चल रहा है या जो आप इंटरवेंशन करना चाह रहे हैं, लाइक वट एवर यू आर ट्राइंग टू सी, या जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं. C इज फॉर कंपैरिजन इंटरवेंशन. ये जरूरी नहीं है कि आपके रिसर्च क्वेश्चन पे अप्लाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. एंड O इज योर आउटकम ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. तो ये हम यूज करते हैं फॉर द सिस्टमैटिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस. आपका जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो ये चीज मतलब जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, लाइक इफ यू आर डूइंग रिसर्च तो यू आर द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर. तो आप ये बिफोर हैंड डिसाइड करेंगे कि आपने रिसर्च क्वेश्चन, आपका रिसर्च इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लाइक यू है. ठीक है. तो अब इसमें मेरी जो P है विच इज द पेशेंट और पॉपुलेशन. अब वैक्सीनेशन आप हेल्दी लोगों की करते हैं ना, एक दफा फिर तो हम वैक्सीनेशन नहीं करते, फिर तो हम ट्रीटमेंट करते हैं ना. तो यहाँ आपका जो P है दैट इज आपकी हेल्दी पॉपुलेशन. ठीक है. इंटरवेंशन मैंने क्या की, वैक्सीन लगाना. ठीक है. वैक्सीनेशन इज द इंटरवेंशन. C आपको वैक्सीन हम नहीं दे रहे. ठीक है. और O आउटकम, मैं ये देख रही हूँ वेदर इट सेफ और नॉट. ठीक है. तो ऐसे आपका PICO हमने ब्रेकअप किया है. तो इसी तरह हम बाकी के रिसर्च क्वेश्चन भी बना सकते हैं. कोई भी आप ऐसे कोविड की वैक्सीनेशन पे करना चाह रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस में एस्पिरिन पे कोई स्टडी करना चाह रहे हैं, COPD में आप लो प्लेट पे स्टडी करना चाह रहे हैं, एनीथिंग यू कैन, लाइक ये जो रिसर्च होती है ये बड़ी यू जस्ट नीड टू थिंक. आप अपना प्रोसेसर यूज करते हैं, that has to be according to these.
So we were on the question कि फिजियोथेरेपी है, तो उनका जो P है that was stroke के patients. Intervention उनकी वो फिजियोथेरेपी टेक्निक्स थी. कंट्रोल उनका ये था कि ऐसे पेशेंट्स जिनको स्ट्रोक तो है लेकिन उनकी फिजियोथेरेपी नहीं हुई, एंड आउटकम वाज देयर एबिलिटी टू वॉक आफ्टर फिजियोथेरेपी. ठीक है. सो अब आप सब लोग ऐसा करेंगे, उमर विल चेक द चैट बॉक्स और एक कुछ भी सोच के ट्राई टू ड्राफ्ट रिसर्च क्वेश्चन, ये PICO अप्रोच के अकॉर्डिंगली. मतलब जरूरी नहीं है, ये कोई टेस्ट नहीं है, वी आर नॉट जजिंग यू, लेकिन दिस इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस. एनीथिंग जो आप अपने सब्जेक्ट स्पेशलिटी से रिलेटेड, anything from the respiratory, anything from the cardiovascular, from anatomy, from biochemistry, anything non-health sciences भी होगा, it will perfectly work. But just to practice this PICO technique. Participants kindly chat box में reply करें और फिर I'll read it out to Ma'am Shumaila. Ma'am, Mariam Tariq has a reply. With the population being lung cancer, intervention being chemotherapeutics, control being placebo, and the outcome being overall survival rate. ठीक है. तो कीमोथेरेप्यूटिक्स मतलब इसमें ये है कि लंग कैंसर पेशेंट आपके जो है वो आपकी पी हो गया, राइट. एंड कीमोथेरेप्यूटिक लाइक एनी स्पेसिफिक कीमोथेरेपी, हम कोई ड्रग मेंशन कर सकते हैं. सो शी इज वेरी राइट. प्लेसिबो के साथ कंपेयर करके वी कैन चेक द सर्वाइवल रेट. या ऐसा भी कर सकते हैं कि हम दो ड्रग्स को कंपेयर कर लें. फॉर एग्जांपल, एक को आप एक टाइप का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, दूसरों को दूसरे का, रेडियो कीमो दोनों. तो शी इज वेरी राइट. Then I guess we have another one, patients of atrial fibrillation and cryoablation therapy versus antiarrhythmic drug, and we want to see the quality of life. Yes, ठीक है. ये this is also a very good question. थोड़ा सा मतलब atrial fibrillation भी फिर we can थोड़ा सा इसको भी specify कर सकते हैं, but this is just for practice. We are not actually हम research करने नहीं वाले. Like this can be refined further. So this is मतलब this is the way you define your research question, या आप अपना research question कैसे बनाते हैं. Similarly, अगर आप कोई public health के topic पे बनाना चाहें या कोई community medicine से related, तो उस पे भी आप अपना research question ऐसे ही identify करते हैं. तो this is not just for the systematic review. For any research, आपका जो research question होता है या जो आपके objectives होते हैं, उधर हम SMART का word use करते हैं, तो इधर हम PICO का की जो टेक्निक है यूज करते हैं. आप लोग साथ साथ यू कैन पुट इन योर आइडियाज इन दिस चैट बॉक्स एंड वील मूव अहेड जस्ट टू कीप पेस विद टाइम. तो आप लोग प्रैक्टिस कर भी सकते हैं. ऑल्सो जरूरी नहीं है, यू कैन अपने साथ भी करके यू कैन मेक श्योर के यू हैव लाइक लर्न हाउ टू make a research question or how to draft a research question. So we'll move ahead. This was the step 1. हमने एक क्वेश्चन बना लिया. ठीक है. अच्छा, अब आपने रिसर्च क्वेश्चन बना लिया, लेकिन रिसर्च क्वेश्चन के साथ अभी हमने थोड़ी देर पहले इबोला वैक्सीन क्वेश्चन मैंने बनाया, लेकिन मेरा अपना प्रायर नॉलेज भी होना चाहिए. आई शुड नॉट बी, मैं अगर फॉर एग्जांपल आई एम अ पल्मोनोलॉजिस्ट, अब अगर मैं बैठ के लेट से एनाटॉमी पे कोई रिसर्च कर रही हूँ लेट से, तो आई एम नॉट अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट. मेरा जो प्री डिफाइंड नॉलेज है या जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो तो पल्मोनोलॉजी था, लेकिन अगर अब मैं एनाटॉमी में रिसर्च कर रही हूँ तो दो ऑप्शंस हैं. या तो मुझे किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए, या फिर मैं इतना टाइम निकालूं कि अब मैं बैठ के एनाटॉमी में मतलब इतना अपना नॉलेज बिल्डअप करूं कि मैं एनाटॉमी में कोई रिसर्च कर ही सकूं. और ऑप्शन ये है कि उधर ना करूं, फिर एक ऐसी जगह पे करूं जो मुझे जिसका एक प्री डिफाइंड नॉलेज मेरे पास ऑलरेडी है. लाइक इट शुड बी माय ओन एरिया ऑफ इंटरेस्ट. सो आपकी प्रिलिमिनरी रिसर्च और आपका इज वेरी 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 नेसेसरी. आप राइट. फॉर एग्जांपल, अब एक सर्च, जैसे आपके पास डेटाबेसेस होते हैं गूगल स्कॉलर, इसी तरह हमारे पास पबमेड है. ठीक है. अब एक टॉपिक है इबोला और वैक्सीन, क्योंकि इसकी पहले हमने एग्जांपल दी, तो अब इस पे ये देखने के लिए
इस पे अगर मैं रिसर्च करना चाह रही हूँ, एक सिस्टमेटिक रिव्यू करना चाह रही हूँ, बेसिकली मैं कोई आरसीटी या ऑब्जर्वेशनल स्टडी नहीं कर रही, आई एम कंडक्टिंग अ सिस्टमेटिक रिव्यू। अब इसमें मैं अपना नॉलेज बिल्ड करूंगी कि इबोला और इबोला की वैक्सीनेशन पे आई एम डूइंग समथिंग। तो इस पे ऑलरेडी कितना काम हुआ है, कौन से किस किस काम में क्या क्या डेफिशिएंसी थी, या इसका कौन सा एरिया मैं टारगेट कर सकती हूँ। तो अगर आप लोग, इफ ऑल ऑफ यू आर, या अगर कोई डेस्कटॉप से लॉगिन नहीं भी है, फोन में ट्राई करके देखें आप लोग। ओपन पबमेड, गूगल में आप पबमेड लिखें। एक्चुअली दिस कनेक्शन इज अनस्टेबल, अदरवाइज वी वुड हैव डन इट हैंड्स ऑन। लेकिन ओपन द पबमेड टैब और आप वहां पे कोई भी अपनी फेवरेट कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल इबोला एंड वैक्सीन, कोविड एंड वैक्सीन, कोई भी ऐसा टॉपिक आप सर्च करके देखें, सो दैट यू कैन टेल मी बैक कि आपको क्या क्या रिजल्ट। अब इस स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं, आई हैव रिटन इबोला एंड वैक्सीन, ये एक स्क्रीनशॉट है बेसिकली। एंड इस पे मुझे 477 रिजल्ट्स, इफ यू कैन सी, ये जो सेव ईमेल और सेंड टू का ऑप्शन है उसके नीचे लिखा है 477 रिजल्ट्स। तो ये इतने नंबर ऑफ रिजल्ट्स मुझे मिले पबमेड से, यानी पबमेड पे इतनी स्टडीज मौजूद है इबोला एंड वैक्सीन को लेके। इसमें भी हम बात करते हैं कि ये टर्म्स हम कैसे यूज करते हैं सर्च करने के लिए, लेकिन जस्ट राइट एनीथिंग रैंडम। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं कोविड एंड विटामिन सी, लेट से, या आप लिख सकते हैं स्कर्वी एंड विटामिन सी, या आप लिख सकते हैं विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट, एनीथिंग, राइट एनीथिंग एंड जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि आपको कितने रिजल्ट्स आए। एनीथिंग, आप पबमेड गूगल पे पहले आप जाके पबमेड ओपन करेंगे, पबमेड में फिर आपने राइट एनीथिंग, दो वर्ड्स लिखे, रिलेटेड वर्ड्स विद एंड इन बिटवीन, एंड देन लेट मी नो हाउ मेनी रिजल्ट्स डू यू गेट। Okay, so Dr. Shafiq, COVID and vitamin C, 582 results. Yes. Cancer and lifestyle 17735. Just imagine इन दोनों चीजों में, मतलब ये obviously PubMed cannot specify what type of cancer. तो cancer and lifestyle को जब आप combine करेंगे तो you get these many articles. Just look at the number. तो इसी तरह if you try to search this database, ये आपको बताएगा कि कितने without applying filter Ebola and vaccine 1000 34, बिल्कुल। हाँ, हैं कि जब अप्लाई करेंगे तो कैसे आप चीजों को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा कमांड्स भी होती है एंड और नॉट, तो उसके अकॉर्डिंगली भी देन वी, so I guess this point is well taken and we have checked this. अच्छा, अब यहाँ पर मैंने अब थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि हमारे पास पबमेड में जब हम कोई चीज सर्च करते हैं तो हम कमांड्स यूज करते हैं, राइट। अब इन दो वर्ड्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो यू हैव टू जॉइन देम बाय सर्टेन थिंग ना, या तो आपने इन दोनों के बीच में एंड लिखना है, जैसे अभी हमने इबोला एंड वैक्सीन लिखा था, आप लोगों में से किसी ने लिखा कैंसर एंड लाइफस्टाइल, ठीक है। जब आप एंड का टर्म यूज करते हैं दो वर्ड्स के बीच में, तो ये दोनों वर्ड्स जिस जिस आर्टिकल में कैंसर होगा, जिस जिस आर्टिकल में लाइफस्टाइल होगा, पबमेड आपको ये सब कुछ कंबाइन करके दिखा देगा, इररिस्पेक्टिव के दोनों वर्ड्स एक साथ उस आर्टिकल में थे या नहीं थे, ठीक है। सिमिलरली अगर आप दो वर्ड्स के बीच में और लगाएंगे, ठीक है, इबोला और वैक्सीन, अब आपने क्या कर दिया, इबोला ढूंढ के दे दो, वैक्सीन है वो भी ढूंढ के दे दो, ठीक है। फिर अगर आपने दोनों के बीच में नॉट लगाया, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स नॉट मैंगोज, तो वो आपको सारे फ्रूट्स ढूंढ के देगा लेकिन आपको मैंगोज फिल्टर आउट करके दे देगा। तो इस तरह से आप अपने जो रिसर्च है उसको आपने कम करना है या ज्यादा करना, आप अपना लिटरेचर कम ज्यादा ये कमांड्स लगा के करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा बाकी सारी फ्रूट्स के साथ काम है, एप्पल्स के साथ नहीं है, तो मैं नॉट लगा के एप्पल्स को माइनस करूंगी, उसको कहूंगी मुझे एप्पल वाले आर्टिकल्स ढूंढ के मत दो, ठीक है। अब और अगर मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, एप्पल्स और मैंगोज, अब ये मिल रहे हैं ये भी ला दो, ये मिल रहे हैं ये भी ला दो, ठीक है।
और इस तरह से हम अपनी कमांड्स को रिफाइन करके वील ट्राई टू डू द लिटरेचर सर्च। ये लिटरेचर सर्च का तरीका यूज कर सकते हैं, ये इसके साथ आगे वी हैव रिटन, लेकिन हमारा जो है वो और नॉट। फॉर एग्जांपल आपके पास लिटरेचर में फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीरियल्स, अब जो कुछ भी डेटा, एनी डेटा विच इज मतलब इंक्लूसिव है, जब आप और यूज कर रहे हैं ना ये या ये या ये, तो आपने बड़ी सारी चीजों को एक ही टेबल पे लाके रख दिया, ये मिल रहा है ये भी ले आओ, ये मिल रहा है ये मिल रहा है ये भी ले आओ, ठीक है। तो आप पबमेड को ये कमांड दे रहे हैं। ठीक है, बड़ा इबोला एंड वैक्सीन की एग्जांपल थी कि कितना डिफरेंस आ रहा है, आप कितने सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन इट, और आप लोगों ने चैट बॉक्स में टाइप भी कर दिया होगा। सो वी विल मूव अहेड। उमर, कैन वी प्लीज हैव द नेक्स्ट स्लाइड? Sure, ma'am. So this was the activity which we planned. So which we planned. तो अब इसके आगे हम ऐसे करते हैं कि इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया पे बात करेंगे। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया इज एक्चुअली, अब आप सिस्टमेटिक रिव्यू के क्वेश्चन आपने ड्राफ्ट कर लिया, आपने लिटरेचर सर्च भी कर लिया, लेकिन यू शुड हैव सम इंक्लूजन क्राइटेरिया एंड देन यू शुड हैव सम एक्सक्लूजन क्राइटेरिया कि आपने किसी रिसर्च को इन कब करना है और फिर फिल्टर्ड रिसर्च में से आउट कब करना है, ठीक है। सो दिस इज योर एलिजिबिलिटी बेसिकली, कि कोई रिसर्च आपके सिस्टमेटिक रिव्यू का पार्ट बनने के एलिजिबल है या नहीं है। सो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया जो आपका होता है वो बेसिकली जो डुप्लीकेटेड चीजें होंगी। फॉर एग्जांपल मेरा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ये है दैट द रिसर्च इज डुप्लीकेटेड, सो आई वांट टू like remove the duplicated research. I want to remove the duplicated research, and ऐसी कोई लैंग्वेज वाला आर्टिकल हो जो मैं नहीं लाइक इंक्लूड करना चाहती। लेट्स से मेरा कोई फुल टेक्स्ट नहीं मुझे मिला या वो आर्टिकल फ्री नहीं था, सो आई ऑब्वियसली एक्सक्लूड दैट। और इंक्लूजन में ये होगा, फॉर एग्जांपल अब मैं इबोला और वैक्सीनेशन पे रिसर्च कर रही हूँ, तो माय रिसर्च शुड बी, जो मेरा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है वो मैं उधर से मैं इंक्लूजन क्राइटेरिया ड्राफ्ट करूंगी, ठीक है। सो आपका इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आपको डिफाइन करके देगा कि व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च या व्हाट आर्टिकल यू वांट टू काउंट इन, और क्या चीज आप काउंट नहीं करना चाह रहे, ठीक है। सो कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? इसमें हम हमारे पास जो इबोला की एग्जांपल, वैक्सीन की जो एग्जांपल हम दे रहे हैं, तो लेट्स से इसका इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या होगा? ऐसी रिसर्च या ऐसा कोई भी क्लिनिकल ट्रायल, इररिस्पेक्टिव रैंडमाइज्ड हो, नॉन रैंडमाइज्ड हो, या व्हाटएवर जो फॉर्मेट ऑफ स्टडी है, लेकिन वैक्सीन सेफ्टी और इबोला से रिलेटेड हो। दिस इज माय इंक्लूजन क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल अब इसमें मैंने ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि वो पाकिस्तान में स्टडी हुई है या वो दुनिया के किसी भी कोने में हुई हो, आई डोंट माइंड, ठीक है। ना मैंने कोई एज पे मेरा कोई कंसर्न है, ना मैं की एथनिसिटी कोई, आई एम ट्राइंग टू कीप थिंग्स सिंप्लीफाइड, ठीक है। ये बस इबोला और वैक्सीनेशन ये मेरा इंक्लूजन क्राइटेरिया है, बहुत ब्रॉड है, यूजुअली आप इतना ब्रॉड क्राइटेरिया रखते नहीं होते, ठीक है। देन नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
वी विल हैव एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। अब एक्सक्लूजन मैं कौन सी बेसिस पे करूंगी? इंक्लूड तो मैंने अब इतनी सारी रिसर्चेस को कर लिया, बट हाउ विल आई एक्सक्लूड? अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 20,000 रिजल्ट्स आ गए, 20,000 आर्टिकल्स पढ़ना ऐसा भी होगा कि डुप्लीकेट होंगे, और आपने सिर्फ एक डेटाबेस सर्च नहीं करनी होती। आपने पबमेड अलग सर्च किया, फॉर एग्जांपल गूगल स्कॉलर अलग सर्च किया, एम्बेस अलग सर्च किया, मेडलाइन अलग सर्च किया, कुछ तो आपके पास जर्नल के ये जो बुक्स होती हैं उधर से भी आपको मिलेगा। कॉकरेल लाइब्रेरी है हमारी एक रिव्यू आर्टिकल्स की, आपको वहां से भी बड़ा कुछ मिल जाता है। तो ये सब तो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है? फॉर एग्जांपल मैं ऐसी स्टडी इंक्लूड नहीं करूंगी जो ह्यूमंस पे कंडक्ट नहीं हुई। फॉर एग्जांपल रैट्स पे कंडक्ट हुई है, माइस पे कंडक्ट हुई है, दिस इज माय एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, राइट? देन द अदर क्राइटेरिया, मतलब ये आप कुछ भी रख सकते हैं, ये तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं ना। एक क्राइटेरिया एक्सक्लूजन मैंने ये रख दिया कि अगर कोई सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट का पेपर मुझे अवेलेबल है, यानी पेड कंटेंट भी होता है, आपके सारे आर्टिकल्स फ्री नहीं होते, तो अगर कोई फ्री अवेलेबल फुल आर्टिकल मेरे पास नहीं है, मैंने इंक्लूड करना चाह रही, क्योंकि जब तक मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट, सो आई एम नॉट पुटिंग इन एब्स्ट्रैक्ट्स, ठीक है? फिर फॉर एग्जांपल केस रिपोर्ट्स मैंने इंक्लूड करना चाह रही है, कि सीरीज मैंने इंक्लूड करना चाह रही, तो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ये फिल्टर लगा दिया इबोला और वैक्सीन के बाद कि ये चीजें इंक्लूड कर रही हूँ, लेकिन एक्सक्लूड मैंने इन चीजों के बेसिस पे वो आर्टिकल्स एक्सक्लूड करने हैं जिसमें ये इनमें से कोई एक चीज भी प्रेजेंट हो, आई एम नॉट काउंटिंग दैट इन। तो आपका एक्सक्लूजन इंक्लूजन क्राइटेरिया आपकी रिसर्च को रिफाइन कर देता है जी। सर्च स्ट्रेटजी, इसके बाद हमारे पास, उमर कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? Yes, ma'am. अच्छा, तो हमारे पास सर्च स्ट्रेटजी है। इसके बाद अब हम कैसे सर्च करेंगे? उसके लिए अभी हमने एक छोटी सी प्रैक्टिस की भी, ये जो हम टर्म्स एंड और नॉट ये सारी चीजें लगा रहे थे, तो एंड और नॉट लगाने का पर्पस ये था कि हम लाइक सर्चिंग करना चाह रहे हैं ना, तो आप यही सर्च आप सिस्टमेटिक रिव्यू करते वक्त भी यही स्ट्रेटजीज यूज कर रहे होते हैं। मैं जब यूज कर रहे होते हैं तो ये मेश भी कुछ ना कुछ चैट बॉक्स में लिखा, और कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स दी। सो दीज आर द थिंग्स जिधर से हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं अपनी एलिजिबल स्टडीज टू बी इंक्लूडेड इन द रिसर्च। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी हम एक और एग्जांपल भी देखते हैं पबमेड में। फॉर एग्जांपल इफ वी आर ट्राइंग टू सर्च, तो हम कैसे सर्च करेंगे? ये वही सेम चीज है, उसको मैंने थोड़ा सा डिफर करके मॉडिफाई कर दिया है, मतलब चेंज लाने के लिए। इबोला वायरस डिजीज, उसको मैंने पैरेंथेसिस में क्लोज करके एंड वैक्सीनेशन। अब इसके नीचे आप देखें मेरे पास कितने 339 रिजल्ट्स आए हुए हैं, ठीक है? अब इसी तरह से आप फॉर्मुलेट करके एक तरीके से दूसरे तरीके से आप लिख लिख के सर्च करके सारे आर्टिकल्स निकालते हैं। सिर्फ एक टर्म देख के आपने लिटरेचर सर्च नहीं करना, इट हैज टू बी मल्टीपल। यानी आपको जरूरी तो नहीं है, हो सकता है किसी ने इबोला वायरस डिजीज लिखा हो, किसी ने इबोला डिजीज लिखा हो, किसी ने वैक्सीन लिखा हो, किसी ने वैक्सीनेशन करके, टाइटल्स भी तो डिफर करते हैं ना। आपका एब्स्ट्रैक्ट में कोई ना कोई वर्ड, जो कीवर्ड्स किसी ने लिखे होंगे, जरूरी तो नहीं है कि सबने सेम ही कीवर्ड्स लिखे होंगे। तो आपने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना के, मैश टर्म्स बना के, उनको सर्च करके अपना लिटरेचर रिफाइन करना होता है। यू हैव टू कीप अपना लिटरेचर ब्रॉड, ऐसा नहीं है बिल्कुल टनल विजन नहीं रखनी। एज मच एज पॉसिबल आपने आर्टिकल्स फिल्टर आउट करने हैं। बेशक बाद में आप चीजें एक्सक्लूड भी कर दें, लेकिन आपके पास इनिशियली जो आपका डेटाबेस है वो बहुत स्ट्रांग बनना चाहिए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इबोला या और इबोला वायरस और इबोला वायरस डिजीज आप लगाते जाएं और देखते जाए आपके पास कितनी कितनी स्टडीज आती है, ठीक है? बाद में खैर हम डुप्लीकेशंस रिमूव करते भी जाएंगे, ओके? अच्छा, अब ये जो स्लाइड डिस्प्ले है इसमें ये फिल्टर्स हैं। थोड़ी देर पहले किसी ने चैट बॉक्स में लिखा भी था विदाउट अप्लाइंग फिल्टर्स, तो ये फिल्टर्स होते हैं जो हम लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ फ्री जो फॉर्म है फुल आर्टिकल की वो चाहिए, तो मैं इसको टिक कर दूंगी। या अगर मुझे सिर्फ मेटा एनालिसिस चाहिए तो मैं उसको टिक, जो जो चीज आपको चाहिए। इसमें ऊपर टाइम बार भी होता है, आपने कौन से ईयर से कौन से ईयर तक के आर्टिकल्स इंक्लूड करने हैं,
ठीक है। तो आपने ये सारे फिल्टर्स लगा के सर्च करना है, और हर जगह फिर यही सेम फिल्टर्स लगाने हैं। ऐसा नहीं है कि एक डेटाबेस पे आप एक किस्म का फिल्टर लगाकर सर्च कर रहे हैं तो फिर दूसरी जगह कोई और फिल्टर नहीं। अगर आपने एक जगह रिसर्च 2000 से 2024 तक की है तो फिर आपने सब जगह ऐसा ही करना है। ऐसा नहीं है कि हर जगह डिफर 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 करके आपने फिल्टर अप्लाई करना है। नो, इट हैज टू बी सेम एवरीवेयर, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। वी हैव, इसके बाद हमारे पास गूगल स्कॉलर की नेविगेशन है। ये सेम पबमेड की है। इसमें आप देख सकते हैं, ये जो भी स्लाइड डिस्प्ले हुई हुई है, इबोला एंड वैक्सीन, इसमें हमारे पास 477 रिजल्ट आए हैं एंड करके, ठीक है। इससे पहले 339 थे। तो ये इस तरह से आप एंड और का कमाल देख सकते हैं, आपको नंबर ऑफ स्टडीज रिफाइन करके देता है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Yes, ma'am. Okay. Next slide. So now this is Google Scholar. Scholar भी if you want to practice करना चाहते हैं तो आप लोग गूगल पे जाकर गूगल स्कॉलर लिखें, गूगल स्कॉलर एडवांस लिखें, एंड यू विल सी ऐसी ऐप हो जाएगी जो जिसका स्क्रीनशॉट भी आपको स्क्रीन नजर आ रहा है। इसी में वही वाली टर्मिनोलॉजी इबोला एंड वैक्सीन लिखी है मेरी, उसमें आप देख लें किससे सर्च रिजल्ट आए हैं। दे आर लाइक 178,000। क्यों? Okay, so this was navigating the Google Scholar, जिसमें हमारे पास सर्च रिजल्ट उसी तरह से आते हैं जिस तरह से हमारे पास पबमेड से आ रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एम्बेस इज ऑल्सो अनदर सोर्स जहां से आप सर्च आउट कर सकते हैं। ये जो गूगल स्कॉलर और पबमेड है, दे आर फॉर फ्री। यू आर नॉट सपोज टू मेक एनी पेमेंट्स टू देम, या आपको कोई अकाउंट बनाने की या सब्सक्रिप्शंस की जरूरत नहीं होती। इवन फॉर योर डे टू डे यूज भी आप इन दोनों को यूज कर सकते हैं। सो दे आर सबसे अच्छे डेटाबेसेस जहां से आपको आर्टिकल्स भी मिलते हैं, आपको फ्री आर्टिकल्स भी मिलते हैं, और दे हैव अ वेरी वेरी रिच डेटाबेस। बहुत अच्छा सा सर्च इंजन है। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, सेम ये जो गूगल स्कॉलर था, इसमें इसकी ये जो सर्च स्ट्रेटेजी है, ये जो अभी हम बात कर रहे थे फ्रेजेस लगाने की, तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो अभी टैब खुली हुई है आपके सामने, लाइक ये जो स्लाइड में जो चीज शो हो रही है, व्हेन यू क्लिक ऑन द गूगल स्कॉलर, इसके गूगल स्कॉलर एडवांस पे आप जाएंगे तो फिर आपको एडवांस सर्च में ये ऑप्शन शो होगा कि आप फॉर एग्जाम्पल कोई आर्टिकल ढूंढना चाह रहे हैं, आप इसको स्पेसिफाई करके उसको बताएं कि फॉर एग्जाम्पल आई वांट ये एग्जैक्ट फ्रेज मुझे चाहिए, इबोला एंड वैक्सीन का वर्ड उसमें हो, उसमें वैक्सीनेशन का वर्ड हो, या इबोला एंड वैक्सीन में से ये एक वर्ड, यानी इफ यू वांट टू स्पेसिफाई, एडवांस सर्च का जो ऑप्शन है वो क्लिक करके यू कैन रिफाइन इट मोर। ये जो स्मॉल टैब ओपन हुई हुई दैट इज शोइंग कि आप इसको और कितना रिफाइन करें, तो फिर आपको ये नंबर ऑफ रिजल्ट्स कम ज्यादा अकॉर्डिंगली कर दे रहा होता है, ठीक है, विद ऑल दीज सर्च स्ट्रैटेजीज। देन उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, अब इसके बाद सर्च तो आपने कर लिया, बड़े सारे आर्टिकल्स आप लोगों ने सर्च कर लिए, लेकिन अब करना क्या है इनका।
तो आप एक लाइब्रेरी बनाएंगे। एक्सेल, आई गेस मोस्ट ऑफ यू विल नो एक्सेल शीट कैसे यूज करते हैं, लेकिन अगर नहीं भी पता, ये जो जितनी सिस्टमेटिक रिव्यू होती है, नो वन थिंग दैट दिस इज अ टीम वर्क। ये एक बंदे की जॉब बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसा ना सोचे कि आई एम दैट वन मैन शो हो जाएगा और मैं अकेले सब कुछ। नो, दिस इज अ टीम वर्क। हमने शुरू में जो फर्स्ट स्लाइड डिस्प्ले की थी जिसमें बड़ी सारी एंड्स थी, सो दिस इज, अपने आर्टिकल्स को भी यूनाइट करना है, लेकिन आपने खुद भी टीम वर्क करके साथ साथ चलना है। तो आर्टिकल्स जब आप वंस आपने आर्टिकल्स सेलेक्ट कर लिए, तो ये आप कहीं पे सेव भी तो कर रहे होंगे ना, या तो आपने कोई एक्सेल शीट बनानी है, या आपने किसी जगह पे इसको स्टोर भी तो करना है ना। आप किसी ऑनलाइन फॉर एग्जांपल स्टोरेज में स्टोर कर रहे हैं, या आप अपने साथ लैपटॉप में, हमारे पास अगर आप सेव करना चाह रहे हैं, हमारे पास बड़े ऑप्शंस होते हैं। आप इंपोर्ट कर सकते हैं ये सारे आर्टिकल्स। एंड नोट का ऑप्शन आपके पास होता है, वो आपको रेफरेंसिंग भी करके देता है। मेंटली का ऑप्शन, बहुत सारी ऐसे सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल होते हैं। आप वन बाय वन इनको मतलब सेव भी कर सकते हैं। फिर आपने बाद में इसको यूज करके इसमें से डुप्लीकेशन भी हटानी है और डाटा भी एक्सट्रैक्ट करना है। तो यू नीड टू सेव ऑल ऑफ देम, जो जो आपने फिल्टर आउट किए हैं, ठीक है। तो आपने अपनी एक लाइब्रेरी बनानी होती है सिस्टमेटिक रिव्यू करते वक्त, और एक्सेल सबसे इजी टू यूज है, क्योंकि आप इसी एक्सेल को बाद में एसपीएसएस और एनालिसिस के लिए भी आप यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, अब ये जो आपको सामने नजर आ रहा है, दिस कॉक्रेन कोलैबोरेशन का जो मोनोग्राम है, ये कॉक्रेन कोलैबोरेशन आपके पास बड़े सारे एक सिर्फ गूगल स्कॉलर पबमेड नहीं होता, बड़ी सारी और भी ऑप्शंस है हमारे पास। वेब ऑफ साइंस का ऑप्शन है, स्कोपस का ऑप्शन है, बड़े डेटाबेसेस हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। ये तो कुछ, ये 10-12 के जो नाम आपको नजर आ रहे हैं। कॉक्रेन को मेंशन यहाँ पर करना इसलिए जरूरी है, कॉक्रेन एक दिस इज अ वेरी ह्यूज कोलैबोरेशन, स्पेशली सिस्टमेटिक रिव्यूज और मेटा एनालिसिस के लिए। इसका ये जो मोनोग्राम भी है, ये भी बड़े लॉजिकल तरीके से उन्होंने बनाया हुआ है। एक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस में एक चीज होती है जिसको कहते हैं फॉरेस्ट प्लॉट। तो फॉरेस्ट प्लॉट को एज्यूम करके इनका ये जो मोनोग्राम है वो डिजाइन हुआ। इसको आगे मैं आपको बताती हूँ कैसे इन्होंने इसको डिजाइन किया था। एंड दिस फॉरेस्ट प्लॉट, ये फॉरेस्ट प्लॉट एक्चुअली सिग्निफाई कर रहा होता है कि आपका कौन सा डाटा कितना फोकस्ड है, स्ट्रॉन्ग है, उसकी ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल और ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो ये उधर से इन्फर किया हुआ मोनोग्राम है, ठीक है। तो इसको प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कर दें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज उमर। ओके, अब आपने ये सारी चीजें कर ली। एक एंड नोट लाइब्रेरी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि एंड नोट हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है फॉर रेफरेंसिंग, ठीक है। आपने ये सारे, फॉर एग्जांपल मैंने 1000 आर्टिकल्स जमा किए। ये 1000 आर्टिकल्स, इसमें से कोई एक आर्टिकल तो ऐसा भी होगा जो 2-2 दफा आ गया होगा या 3-3 दफा आ गया होगा, लेकिन एंड नोट में जब आप चीजें सेव करते हैं, तो दिस एक्चुअली हेल्प्स यू टू डिलीट डुप्लीकेशंस, राइट। सो आपने ये सारे रेफरेंसेस उधर से, फिर आप ये देखेंगे कि सेम ऑथर, सेम टाइटल, सेम ईयर या सेम जर्नल से जो आपने आर्टिकल लिया है, आपने इसको रिमूव कैसे करना है। तो आपने एक एंड नोट लाइब्रेरी बनानी है। एंड नोट एक सॉफ्टवेयर है, आपको YouTube पे भी बड़ी इसकी वीडियोस ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं। इफ नॉट, समहाउ फ्यूचर में हम कभी देखेंगे, वी विल डू इट हैंड्स ऑन तरीके से, आप इसको सीख सकते हैं बिल्कुल 1-to-1 फेस टू फेस। वो शायद ऑनलाइन, लाइक इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग जो आप ऑनलाइन सीख सके, क्योंकि यू लर्न इट बाय डूइंग। तो एंड नोट एक सॉफ्टवेयर है जो सिंप्लीफाई इट, एक सॉफ्टवेयर है जहां पे आप ये सारे आर्टिकल्स असेंबल करके आप अपनी एक लाइब्रेरी बनाएंगे, फिर उसके बाद वहां से डुप्लीकेशन रिमूव होगी, राइट। उमर, इफ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Ma'am, there's a question in the chat box. Sadiq Rahman is asking, how can we select standard articles as we may get a lot from our search, even with filters? हाँ, उससे भी जा रहे हैं। वी हैव द नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हमारे पास क्वालिटी असेसमेंट होती है, तो तब उनको क्लैरिफाई हो जाएगा। Next slide. हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड कर दें उमर प्लीज। Yes, ma'am. अच्छा, अब हम आ गए हैं, ये जो स्क्रीनशॉट आपको नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली टेकन फ्रॉम द मेंडले। इसमें ये जो रैंडम कुछ आर्टिकल्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये आप इंपोर्ट करें तो वो एक लिस्ट सी बनाता जाता है, फिर ये आपको रेफरेंस भी करके देता है, और यहाँ से फिर आप ये जो फिल्टर हम करना चाह रहे थे, देन वी कैन डू इट फ्रॉम हियर एज वेल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, सो प्रोटोकॉल राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, ये अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है। अब आप जब सिस्टमेटिक रिव्यू कर भी रहे हैं, तो इसको वी हैव टू रजिस्टर।
एक रजिस्ट्री होती है ऑनलाइन जिसको कहते हैं प्रोस्पेरो। आगे कर दें इसको, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज उमर। Yes. प्रोस्पेरो एक आपका जो प्रोटोकॉल होता है सिस्टमेटिक रिव्यू करने का या मेटा एनालिसिस करने का, यू हैव टू रजिस्टर इट, राइट। तो इंटरनेशनल रजिस्ट्री भी होती है, आपकी नेशनल रजिस्ट्रीज भी होती हैं, डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट डिफरेंट। प्रोस्पेरो इज एक्चुअली एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, सिस्टमेटिक रिव्यूज की रजिस्ट्री है, आप इसको ऐसे कह सकते हैं। ये हमारे पास मतलब इसको एक सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंटेड प्लेटफॉर्म कंसिडर किया जाता है फॉर दीज रजिस्ट्रीज। और इसने सबसे ज्यादा फ्लरिश, पहले भी ऐसा नहीं था कि इसकी कोई क्रेडिबिलिटी ना हो, दिस इज अ वेरी वेल रिकग्नाइज, लेकिन कोविड के एरा में दिस हैज बिकम अ वेरी वेरी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म। कोविड के लिए जितने भी ट्रायल्स होते थे उनको पहले यहाँ पर रजिस्टर करना होता था, जितनी आरसीटीज होती थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज थी। सो दिस प्रोस्पेरो प्लेड अ वेरी वेरी बिग रोल इन दैट कोविड एरा फॉर द रजिस्ट्री ऑफ ऑल दोज ट्रायल्स। तो सिस्टमेटिक रिव्यूज के लिए जब आप कोई प्रोटोकॉल डिफाइन करते हैं तो वी रजिस्टर इट ऑन दिस प्रोस्पेरो, दिस रजिस्ट्री। नेशनल इंटरनेशनल हर बंदे का अलग होता है, अगर आप एक इंटरनेशनल लेवल की चीज कर रहे हैं तो यू कैन रजिस्टर इट हियर। फिर उसके बाद हमारे पास ये मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। वी हैव अब आपने रजिस्टर भी कर लिया, उसके नेक्स्ट स्टेप आपके पास होगा टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट स्क्रीनिंग। ये जो अभी आपने चैट बॉक्स के क्वेश्चन का जिक्र किया, अब यहाँ से आपका शुरू होता है कि आपको क्वालिटी कैसे पता चलेगी। शुरू करेंगे टाइटल से, ठीक है। आर्टिकल को जब आप स्टैंडर्ड आप उसका चेक कर रहे हैं तो उसके टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट स्क्रीनिंग से लेके नीचे तक बिल्कुल टिल द रेफरेंसेस यू हैव टू स्क्रीन एवरी आर्टिकल। सिस्टमैटिक रिव्यू करना इसको टॉप ऑफ द pyramid पे रखा ही इसीलिए है बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी बिग जॉब। when you are doing systematic review it has to be like ये टॉप नॉच है ही इसीलिए क्योंकि it takes your sweat and blood जिसको कहते हैं। तो आपने हर आर्टिकल को बिल्कुल, और एक दफा नहीं 10-10 दफा आपने स्क्रीन करना होता है। और सिर्फ एक बंदे ने नहीं, सिंस आई मेंशन कि एक टीम वर्क है, यू हैव टू हैव 2 to 3 डिफरेंट इंडिपेंडेंट पीपल जो आर्टिकल को स्क्रीन करेंगे, फिर आप उसको इंक्लूड एक्सक्लूड, ये क्राइटेरिया बार बार ये पूरा प्रोसेस रिपीट होगा और अल्टीमेटली जाके आपका सिस्टमेटिक रिव्यू बनेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Yes. ओके, तो डुप्लीकेशन, डू नॉट डुप्लीकेट। तो हमने एक आर्टिकल एक ही दफा इंक्लूड करना है, ठीक है। डुप्लीकेशंस को हमने क्योंकि वो लाइब्रेरी में सारे आर्टिकल्स डाल दिए, आपने टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट्स को स्क्रीन करके पता लगाया कि डुप्लीकेशन है या नहीं है, आपने डुप्लीकेट आर्टिकल सारे हटा दिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास इनिशियली 1000 आर्टिकल्स थे, मैंने डुप्लीकेशन हटाई, मे बी वो 800 रह जाए, क्योंकि मैंने गूगल स्कॉलर से भी कुछ आर्टिकल्स उठाए, कुछ एम्बेस से उठाए, कुछ पबमेड से उठाए। अब सेम आर्टिकल्स भी तो इन तीनों जगहों पे हो सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि हर बंदे इन मतलब एक आर्टिकल सिर्फ आपको एक सर्च इंजन से मिलेगा। You will get same article and can get same article on all 3 databases। तीनों से आपको एक, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये 1300 रह जाए आखिर में, हो सकता है 300 हर जगह ट्रिप्लिकेट मैंने उठाए हो। तो आपने इसको मतलब यू हैव टू कीप आर्टिकल एक ही दफा। तो आपका सबसे बड़ा फिल्टर यहाँ पर, पहला फिल्टर आपका ये लगेगा कि आपने डुप्लीकेशन रिमूव की, राइट। सो वी विल एक्सक्लूड ऑल द डुप्लीकेशंस और ट्रिप्लिकेशंस, राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Yes. अब हमारे पास आ जाएगा फुल टेक्स्ट। अब डुप्लीकेशंस आपने रिमूव कर लिया, अब इस फुल टेक्स्ट को स्क्रीन भी करना है, ये मेक श्योर करना है कि आपके पास फुल टेक्स्ट डाउनलोडेबल है, ठीक है। आप क्योंकि फ्री आर्टिकल्स, हमने शुरू में कहा कि हम सिर्फ फ्री आर्टिकल्स इंक्लूड कर रहे हैं अपने सिस्टमेटिक रिव्यू में, तो फुल फ्री टेक्स्ट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। और आपके पास फ्री फुल टेक्स्ट नहीं होगा तो आप आर्टिकल को रिव्यू करेंगे कैसे। तो फुल टेक्स्ट का होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अक्सर आपने देखा होगा ये एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसके साथ एक स्मॉल सा बॉक्स बना होता है, वहां लिखा होता है फुल फ्री टेक्स्ट। आप उस पर क्लिक करते हैं तो फिर पूरा आर्टिकल ओपन हो जाता है। तो वहां से आपने पूरा आर्टिकल ओपन करना है, डाउनलोड करना है, या जैसे जिधर भी आप स्टोर करना चाह रहे हैं, उसके बाद आपने उसको रीड करके और स्क्रीन करना शुरू करना है, राइट। नेक्स्ट। अच्छा, अब एक तो आपने ये सर्च इंजन्स की हेल्प से सर्च आउट कर लिया और आपने अपनी लाइब्रेरी बना ली, फिर आपने डुप्लीकेशंस हटा ली। फिर उसके बाद टू मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट आप मैनुअली भी चेक करें। मैनुअली चेक करने का मतलब ये है कि आप खुद एक एक ओपन कर करके देखते जाएं, जैसे हम वो यूजुअली कर नहीं होते, टिक लगाओ, क्रॉस लगाओ, ये हटाओ, ये वाले तरीका इज ऑल्सो अ मेथड। जब आप सिस्टमेटिक रिव्यू कर रहे हैं, आखिर में आपने मैनुअल सर्च करके भी चीजें रिफाइन करनी होती हैं, तो आप तब जाके उसको बिल्कुल सबसे अच्छी एक जो प्रोडक्ट है वो बना सकते हैं, राइट।
फिर उसके बाद अब आपने सारे बायसेस खत्म करने हैं, ठीक है। अब आपने ये भी मेक श्योर करना है कि मतलब इसमें कोई आप जो स्टडीज इंक्लूड कर रहे हैं, एक तो स्टडीज का अपना इन इट सेल्फ बायस होता है, बट यू एज द ऑथर ऑफ द सिस्टमेटिक रिव्यू आर नॉट सपोज टू बी बायस्ड। तो आपने पहले तो ये है कि दो तीन लोग सेम स्टेप, दो तीन लोग जब रिपीट करेंगे तो दिस इज गोइंग टू रिमूव द बायस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक चीज मुझे एक तरीके से लग रही है, मे बी आई एम रॉन्ग, द अदर पर्सन कैन रेक्टिफाई इट और रिफाइन इट फॉर मी। सो जब आप दो तीन लोगों से, इंडिपेंडेंट लोगों से सेम स्टेप रिपीट करवाएंगे, यू कैन लिमिट द जो आपका बाइस पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पर आपको कोई कंफ्यूजन है, आप उस ऑथर को, उस स्टडी के ऑथर को या उसके रिसर्चर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर होता है हर आर्टिकल का। सो इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट समथिंग, कॉन्टेक्ट देम, आस्क देम दैट वी आर ट्राइंग टू इंक्लूड योर आर्टिकल। तो अगर आपको कोई एम्बिग्विटी है या उनके किसी भी स्टेप पे, उनकी मेथोडोलॉजी पे प्रॉब्लम है, कोई फंडिंग पे प्रॉब्लम है, कोई एथिकल इशू आपको नजर आ रहा है, यू कैन मेक योरसेल्फ क्लियर अबाउट इट, राइट। यूजुअली ऐसे होता नहीं है, आर्टिकल्स जब पब्लिश होते हैं दे आर वेरी मच क्रिस्टल क्लियर, बट जस्ट इन केस, ठीक है। तो फिर उसके बाद वी विल बी एबल टू, मतलब आपने यू हैव टू गिव द बेस्ट, उसके बाद यू विल बी एबल टू अच्छा सा सिस्टमेटिक रिव्यू या एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए। फिर क्वालिटी असेसमेंट हम कैसे करेंगे? हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड कर दें प्लीज। हमारे पास एक टूल होता है प्रिज्मा, जिसको कहते हैं प्रिज्मा, एक चेकलिस्ट है बेसिकली। ये चेकलिस्ट आपको ये भी बताती है कि आपने आर्टिकल्स इंक्लूड करके उनको स्क्रीन कैसे करना है और फिर उसके बाद उनकी क्वालिटी असेसमेंट कैसे करनी है, राइट। सो ये हमारे पास 2 to 3 इंडिपेंडेंट रिव्यूअर्स उस चेकलिस्ट को चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक चेकलिस्ट की एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे दूंगी कि टाइटल था या नहीं था, एब्स्ट्रैक्ट था या नहीं था, मेथोडोलॉजी डिफाइन थी या नहीं थी, ग्रांट, फंडिंग, एथिकल इंटरेस्ट, ह्यूमंस पे थी नहीं थी, मतलब उसकी तकरीबन 12-13 क्वेश्चंस होते हैं और आपने हर आर्टिकल को उस चेकलिस्ट पे जज करना होता है। फिर आपने मार्क करना होता है कि वेदर दिस आर्टिकल इज टू बी इंक्लूडेड इन माय रिसर्च और नॉट। उधर से फिर आप फिल्टर लगा के हर आर्टिकल को उस चेकलिस्ट से चेक करके आप फिल्टर करके पहुंचते हैं। तो एक ये तरीका है, ठीक है, प्रिज्मा का जो है। फिर उसके बाद कुछ स्पेसिफिक स्टडी डिजाइन होते हैं, उनके लिए अलग अलग टूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर नॉन रेंडमाइज्ड ट्रायल है तो उसके लिए एक रॉबिन्स वन टूल है जो आपको क्वालिटी असेस करके देता है वेदर दिस इज अ क्वालिटेटिव स्टडी और नॉट, ठीक है। फिर इसी तरह हमारे पास एक रॉब टू कॉकरेन टूल होता है फॉर द आरसीटीज। तो हर टाइप ऑफ स्टडी डिजाइन के लिए भी आपके पास डिफरेंट टूल है जो आपको क्वालिटी असेसमेंट करके दे रहा है। किसी ने पूछा था कि क्वालिटी आप कैसे असेस करते हैं, सो दीज आर द टूल्स जो आप यूज करते हैं फॉर द क्वालिटी असेसमेंट। फिर हमारे पास यहाँ पर वही सेम इबोला की एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम बायस असेस करना चाह रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, एक स्टडी इवेल्युएट कर रहे हैं कि हमारे पास इसमें रिस्क ऑफ बायस है या नहीं है, तो आपने फॉर एग्जांपल एक चेकलिस्ट थी, ये जो इबोला का रिव्यू आर्टिकल मैंने शुरू में दिखाया, उसमें 14 क्वेश्चंस थे। 2 to 3 रिव्यूअर्स ने वो सारे 14 क्वेश्चंस की बेसिस पे हर आर्टिकल को जज किया जो उन्होंने इंक्लूड करना था, और फिर उसके बाद उसको इन या आउट करके उसको स्कोर दिया ना, ठीक है। स्कोर दिया, फॉर एग्जांपल 0 to 5 है, इट मींस दिस इज पुअर, 6 to 9 है, इट मींस दिस इज फेयर, एंड 10 to 14 है, इट मींस दिस इज गुड। तो अकॉर्डिंगली उन्होंने हर आर्टिकल को फिर रेट किया और देन वी डिसाइडेड कि अब आर्टिकल इन है या आर्टिकल आउट है। तो ओवरऑल स्कोर को कैलकुलेट करके हमने ये डिसाइड किया। दिस इज अ वीडियो, इफ यू कैन प्लीज प्ले इट, उमर, आपको ये डेटा एक्सट्रैक्शन थोड़ी समराइज हो जाएगी। Should I play the animation, ma'am? ये वीडियो है, हाँ जी, प्लीज उसको प्ले करें। Okay. ऑटोमेटिक, दिस हैज टू प्ले ऑटोमेटिकली, बट इफ यू कैन एडजस्ट द वॉल्यूम्स। Yes, let me check. आवाज आ रही है या नहीं? Yes, ma'am, आ रही है। नहीं, Part- वीडियो की आवाज। मैम मुझे आ रही है, आप काइंडली कंफर्म कर दें कि आपको आ रही है, और पार्टिसिपेंट्स भी काइंडली चैट बॉक्स में बता दें कि उन्हें इस एनिमेशन की आवाज़ आ रही है।
No sound. मुझे Let तो me वीडियो की की आवाज आ रही है लेकिन वीडियो की आवाज नहीं आ रही। sort that out, man. स्लाइड शो एग्जिट करके इफ यू कैन चेक अगर प्ले हो रही है। Sure, man. If it's not playing, it's okay. We can move to the next slide. ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब इसमें वही कुछ है जो अभी मैं आपको बता रही हूँ। Systematic reviews help make sense of many kinds of data. They're a way of reviewing all the data and results from research about a particular question in a standardized, systematic way. A systematic review helps give an objective and transparent overview of all evidence surrounding a particular question. The Cochrane Collaboration logo visually represents how results from some systematic reviews can be explained. Here's how a systematic review works. First, a question must be defined, and an objective method for asking the question is agreed. Imagine a circle as the area defined by a question. Everything inside it concerns the question. Everything outside of it does not. In this circle, relevant data will be included. A search for relevant data begins. This data can come from many sources, including data from clinical trials. Imagine the shapes represent data sets from different research, for example, different clinical trials. The data set must be the right shape to fit. Only data from research that matches certain criteria can be included so that the results are reliable. For example, selecting research that is good quality and answers the defined question. If the research meets the criteria, more detailed information about the research can be collected or extracted. Information extracted can include how the research was done, often called the method, who participated in the research, including how many people, how it was paid for example, funding sources, what happened, the outcomes. This information is judged against criteria in order to assess the quality of the research. Once the information is extracted, it can be combined using complex statistical methods to give an overall result from all of the data. This circle is one way of representing this data visually. It's called a blobogram or a forest plot. The area of inquiry, defined by the question, can be divided into a yes and a no half, a positive and a negative side. The shorter the line, the more confident we are of what the data is telling us. Think of a longer line as less focused and scattered data, and shorter as more focused and bunched. Imagine knowledge as light and ignorance as darkness. The more spread the focus of the light, the weaker it is, and the less clear things are. If the light is focused and data is grouped more clearly, we can be more confident of what we see. The diamond represents the combined results of all the data included. Because this combined result uses data from more sources than just one data set, it's considered more reliable and better evidence. The more data there is, the more confident we can be. ओके सो दिस वाज एक्चुअली एक समरी सी थी बेसिकली ये जो अभी तक हम बात कर रहे थे, ये जो कॉक्रेन का मोनोग्राम भी मैंने आपको बताया, दिस वाज अ फॉरेस्ट प्लॉट एंड दिस वीडियो एक्चुअली इलेबोरेटेड थोड़ा सा ज्यादा कि हाउ वी आर इंक्लूडिंग स्टडीज और फॉरेस्ट प्लॉट जब बनता है, फॉरेस्ट प्लॉट बेसिकली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जब हम करते हैं तो डिफरेंट हमारे पास मॉडल होते हैं, मेटा एनालिसिस में बेसिकली यूज होता है, नॉट इन द सिस्टमैटिक रिव्यू। सो ये आपको स्ट्रेंथ ऑफ स्टडीज और ये चीजें बता रहा होता है। दिस इज प्योरली अ सिस्टम लाइक स्टैटिस्टिकल थिंग, आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल और कोरिलेशंस और रिग्रेशंस और इन चीजों से कंक्लूड करके अच्छा नाउ वी हैव रीच टू द डाटा चेकिंग, राइट। तो इसमें ये है कि हमारे पास चूंकि बाइस भी हो सकता है, हमारे पास एरर भी आ सकता है डाटा में। तो अब आप जब कोई रिव्यू आर्टिकल या कोई रिसर्च आर्टिकल सिस्टमेटिक रिव्यू में इंक्लूड करना चाह रहे हैं, एक जैसे हमने अभी कहा कि 2 to 3 रिव्यूअर्स आपको चाहिए होते हैं एट एवरी स्टेप
टू चेक द आर्टिकल, और फिर एक को हर स्टेप को आपने 2-2 3-3 दफा करना होता है, राइट? सो दिस systematic review will ultimately give you very high quality evidence after all these steps. अब आपने, for example, due to the expected human error and bias, there should be a data checking step in which every included article is compared with its counterpart in an extraction sheet by evidence photos to detect mistakes in the data. ठीक है, अब आपने एक शीट बनाई, आपने उसके आगे लिखते जाना है, फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे कोई डेफिशिएंसी आ रही है या कोई पॉजिटिव पॉइंट्स है या कोई स्ट्रेंथ, व्हाटएवर, बट जो जो चीज आपको चाहिए हर आर्टिकल से, फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल है इबोला एंड वैक्सीन के बारे में, मुझे चाहिए कि कितने लोगों के लिए ये इफेक्टिव थी, कहाँ कहाँ एडवर्स रिएक्शन हुआ, कौन कौन सा एडवर्स रिएक्शन हुआ. सो आई हैव टू टेक ऑल दिस आउट, वो जो नेसेसरी पॉइंट्स है मेरे लिए हर आर्टिकल से, और वो सारे पॉइंट्स को निकाल के मैंने एक शीट पे फॉर एग्जांपल लिख लिया. एक मेरे पास एडवर्स इफेक्ट्स का कॉलम आ गया, एक मेरे पास कोई जो सेफ्टी प्रोफाइल है उसका कॉलम आ गया, फिर जो एडवर्स इफेक्ट्स थे उनको अलग अलग इलेबोरेट करके बताया कि कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट कितने कितने पेशेंट्स में हो गए. लाइक दिस इज जस्ट अ लेमैन एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ. So that's how we extract the data and then we counter check it repeatedly. ठीक है, हर आर्टिकल के लिए. फिर इन सबको कंबाइन करके हमने सिस्टमैटिक रिव्यू ड्राफ्ट करना होता है. देन नेक्स्ट, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अच्छा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जब हम कर रहे हैं तो एनालाइज करने से पहले दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि अब आखिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने से पहले, बिकॉज दिस इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, हम में से कोई स्टैटिस्टिकल एक्सपर्ट नहीं होता. वी यूजुअली टेक हेल्प, एक स्टैटिस्टिशियन की हेल्प आपको चाहिए होती है. जैसे आप लोगों के कॉलेज में भी एक स्टैटिस्टिक्स वाला एक्सपर्ट बंदा कोई ना कोई अवेलेबल होता है, हर कॉलेज में होता है. जहाँ कोई जर्नल हो रहा, जर्नल किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में रन हो रहा होता है, दे डू हैव अ स्टैटिस्टिशियन. सो यू हैव टू टेक एक्सपर्ट हेल्प आपको चाहिए होती है. नन ऑफ अस इज एक्सपर्ट इन स्टैटिस्टिक्स. तो अब अगर आप वहां उस स्टेप पे जा ही रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो चीज लेकर जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है. एनालाइज जब आप उस चीज को करेंगे, उस चीज पे, जिस चीज पे आप रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं, तो दैट शुड बी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एंड क्रिस्प data, right? So this is very much important that you do the cleaning of the data before analyzing it. अब यहाँ पर आपके पास you have to be sure that आपका data qualitative है या आपका data quantitative है, right? So qualitative या quantitative के बाद आप ये देख रहे होते हैं कि आपने कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है या कौन सा मॉडल अप्लाई करना है. यहाँ से जो सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस है उसका पाथवे इस स्टेप पे थोड़ा सा डिफर कर जाता है. अभी तक तो दोनों चीजें सेम टू सेम, नेक टू नेक चल रही हैं, लेकिन एनालिसिस के पॉइंट पे आपने सिर्फ थोड़ा सा डिफर कर जाना होता है. ठीक है, इन बोथ ऑफ दीज मेथडोलॉजीज. देन आपने सब कुछ कर लिया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी कर लिया, यू हैव डबल चेक्ड द डाटा, यू हैव मतलब आपके पास बिल्कुल ready to do thing है, right? You have double checked the data, you are sure everything is crystal clear and clean, right? आप प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, आपने हर चीज कंक्लूड कर ली कि आप जिस चीज के बारे में रिसर्च कर रहे थे, ये आपको, आप क्या चीज मतलब वट एवर वॉज यूर क्वेश्चन, वो PICO जो हमने इनिशियली थॉट आउट किया था, और अब जब आप इस स्टेज पे पहुंचे हैं, whether these two things are coinciding or not. If they are coinciding, you are on the right track. If not, again step 1 और दोबारा करके देख रहे हैं कि मतलब किस पॉइंट पे आपने क्या चीज डेफिशिएंट छोड़ दी. बट इफ एवरीथिंग इज ठीक ठाक, जो आपने सोचा था आप वैसे ही सब कुछ चेक कर लिया, एवरीथिंग इज फाइन, इफ इस स्टेप तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो वी आर नाउ रेडी टू राइट. अब हमने जो किया उसको लिखना भी है, राइट? तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब हम राइट करेंगे, उसको फिर दोबारा रिवाइज करेंगे और फिर कहीं सबमिशन की बारी आएगी, राइट? तो राइट भी करेंगे, लेकिन राइटिंग के लिए भी आपने जो जो किया उसको राइटिंग का भी एक तरीका होता है. ये प्रिज्मा फ्लो चार्ट और चेकलिस्ट है, ठीक है? इसमें आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर इनिशियली जो आइडेंटिफिकेशन का लेवल है, वहां पे लिखा है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आइडेंटिफाइड थ्रू द डेटाबेस सर्चिंग, और फिर दूसरा लिखा है नंबर ऑफ एडिशनल रिकॉर्ड्स आइडेंटिफाइड थ्रू अदर सोर्सेज. यहाँ आपने वो नंबर मेंशन करना है जो आपको इनिशियली मिला था. फॉर एग्जांपल 1000 जो मैंने एज्यूम किया था, मुझे 1000 मिला, ठीक है? फिर नीचे आपको स्क्रीनिंग के स्टेप पे वो कह रहा है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आफ्टर डुप्लीकेट्स रिमूव्ड. अब लेट्स से मेरे पास 200 डुप्लीकेट्स आए थे तो मेरा 800 रह गया. फिर दोबारा स्क्रीन किया नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स
एक्सक्लूडेड, अब एक्सक्लूड मैंने कौन से क्राइटेरिया, वो जो मेरा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया था मैंने एक्सक्लूड किया, अब कितने रह गए, लेट्स अज्यूम 700। फिर नीचे आ जाए अब एलिजिबिलिटी, नंबर ऑफ फुल टेक्स्ट आर्टिकल असेस्ड फॉर एलिजिबिलिटी। अब इसमें कुछ आर्टिकल्स होंगे जो मुझे फुल टेक्स्ट नहीं मिला, मैंने उनको निकाल दिया, 100 मैंने निकाल दिए, मेरे पास रह गए 600। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इंक्लूडेड, नंबर ऑफ स्टडीज इंक्लूडेड इन द क्वालिटेटिव सिंथेसिस, सब कुछ करके जो मैंने इंक्लूड किया, वो जो 600 मेरे पास लेट्स से रह गए, मैंने और कुछ एक्सक्लूड नहीं किया, ये मैंने इंक्लूड कर दिया, ये मेरे स्टडी के आर्टिकल है 600, लेट्स से दिस इज जस्ट एक अज्यूम्ड नंबर है। ठीक है, तो इसकी बेसिस पे अब मैं अपनी स्टडी ड्राफ्ट करूं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और ये मैंडेटरी होता है, ये जो प्रिज्मा का फ्लो चार्ट है, ये आपने हर रिव्यू आर्टिकल में आप देख भी सकते हैं। ये जो अभी आप स्लाइड देख रहे हैं, दिस इज टेकन किसी आर्टिकल का स्नैपशॉट है, तो उन्होंने आइडेंटिफाई करके, पहले इन्होंने इनिशियली जो नंबर फाइंड आउट किया दैट वाज 19,984 फ्रॉम वन सोर्स एंड 38 फ्रॉम अदर। फिर उसके बाद उन्होंने डुप्लीकेट्स रिमूव की तो 16,000 समथिंग रह गए। फिर आहिस्ता से और से फिल्टर करते गए एट द वेरी लास्ट स्टेप आप देख सकते हैं उनके पास सिर्फ 96 स्टडीज रह गई हैं जो उन्होंने इंक्लूड की हैं अपनी एनालिसिस में। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड। Yes, ओके, सो अब आप राइट करेंगे, अभी आपने जो कुछ करना था वो तो कर लिया, लेकिन राइटिंग भी इट्स नॉट वेरी इजी। स्टार्ट आप करते हैं इंट्रोडक्शन से, फिर आप अपने मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन करते हैं, फिर आप रिजल्ट्स लिखते हैं, और फिर उसके बाद आप उसको डिस्कस करते हैं, फिर आप मेक श्योर करते हैं कि ये सारा प्रोसेस इज रिपीटेड क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम्स। आपने रिफाइन करना होता है, मतलब राइटिंग फॉर सम जर्नल और राइटिंग फॉर एन ऑफिशियल फोरम इज डिफरेंट फ्रॉम आवर यूजुअल राइटिंग। ठीक है, तो आपने हर एक जर्नल की, जो अगर आप सबमिशन कर रहे हैं, हर एक का अलग प्रोटोकॉल होता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के जो कॉलेज का जर्नल है जेएमएस या जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेस, अगर आप उसकी वेबसाइट पर जाकर देखें तो आपको एक प्रोटोकॉल, उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई चीज सबमिट कराना चाह रहे हैं, लेट्स से इट्स अ सिस्टमैटिक रिव्यू, तो उसका एक प्रोटोकॉल उन्होंने दिया होता है कि आपने हमें ये चीजें सबमिट करानी है। ठीक है, तो उसमें भी प्रिज्मा प्रोटोकॉल आपको मिलेगा, आपने उसको प्रिज्मा प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली सबमिट करना होता है। अगर आपने कोई रिव्यू आर्टिकल लिखा है तो आपको फिट इन करना होता है उनकी रिक्वायरमेंट्स में, और तब आप सबमिट कर सकते हैं। सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर राइटिंग, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनकी अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। सो दिस इज अनदर वीडियो, ये बिल्कुल समरी वीडियो है, ये आपको सारे स्टेप समराइज करके दिखाएगी। उमर, इफ यू कैन प्लीज प्ले इट। sure, ma'am. From a distance, the steps of a systematic review look pretty basic. To answer a question or a series of questions, you just gather all the information that exists, filter out the information that doesn't apply to your question, then combine it all together into a report about existing evidence and research gaps. But let's take a closer look. Systematic reviews follow a rigorous scientific process. It takes more than a few steps to comprehensively gather, combine, and evaluate existing evidence. First, make sure you're asking your questions in the right way. It's possible your questions are too broad. So many people have tried to answer your questions in so many ways that you'll never gather all of the evidence. But maybe your questions are too narrow, and there's no research or not enough research to synthesize. That's why the first step of a systematic review is prepare your topic. Take a quick look at the available evidence to make sure there's enough research to address your question. Then, craft a question that's clear and specific enough to help you decide what kind of studies should and shouldn't be included in your search. Once you've prepared your topic, you can go on to step 2, search for studies. Of course, you'll go to electronic databases to find published articles related to your question. But to find all of the evidence related to your questions, you might have to look in some unconventional places. Once you've searched everywhere for evidence, you can move on to step 3, screen your studies. In this step, you take a careful look at what you've gathered, removing evidence that doesn't answer your question or has research methods you want to avoid. Once you've sifted through all your evidence, it's time for step 4, extract the data. Take the evidence that's left and pull out the information that will help you answer your question. Once the data have been extracted, you will need to carefully combine and analyze what you found.
This is step 5. Analyze and synthesize your evidence. If you're conducting meta-analysis, this is where you'll use statistical tools to combine your data. You'll also look at your studies to evaluate the quality of the research and check for bias. Once everything is prepared, you'll combine all of your evidence together to summarize the research that addresses your question. Now you're ready for the last step. Report your findings. Once you've decided what the evidence has to say about your question, turn your conclusions into a report that describes the steps you took and what you discovered. Then share it with anyone who cares about your question. Want to answer more questions with a systematic review? Don't forget the steps. Prepare your topic, search for studies, screen studies, extract data, analyze and synthesize evidence, and report your findings. There you have it, the steps of a systematic review. Enjoy! So I guess this video would have summarized all these steps for you. एक recipe सी थी. So we will conclude systematic reviews here. कि हमारे पास ये सारे steps follow करके we can do the systematic reviews. Steps actually they are very easy. लेकिन if you have to repeat it one after another, बार-बार refine करने के लिए वो चीज उसको थोड़ा सा credible बना देती है, and this transparency actually gives a systematic review on that top of the pyramid. So right from refining and defining your research question till drafting your manuscript, this is a teamwork. Systematic review जो है आपके पास it's not that के डिफिकल्ट है या डुएबल नहीं है, लेकिन इट्स अ टीम वर्क. चाहे वो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के पार्ट पे हो, चाहे वो आपका स्टैटिस्टिकल जो एक्सपर्ट है वो है, या फिर चाहे वो आपका कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट है. सो दिस टीम वर्क विल एक्चुअली लीड यू टू द फाइनल, और जो आपका बाय प्रोडक्ट आपके पास आता है, जिसके लिए हम कहते हैं कि दिस इज द प्रीकर्सर फॉर द पॉलिसी मेकर्स एंड फॉर द प्रैक्टिशनर्स. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अच्छा, नाउ दिस इज आप देख सकते होंगे ENT मैनिफेस्टेशंस इन COVID-19 पेशेंट्स. ये एक रिव्यू आर्टिकल है और हमारे पास एक बिल्कुल ये जो जिसको हम टॉप नॉच जर्नल्स कहते हैं, या जो टॉप नॉच हमारे पास प्लेसेस होती है वेयर यू एम टू पब्लिश योर रिसर्चेस. तो दिस इज आल्सो वन ऑफ दैट उन्हीं किस्म की एक जगह पर पब्लिश किया हुआ रिसर्च आर्टिकल है. सो दिस रिसर्च आर्टिकल बेसिकली आपको रिव्यू आर्टिकल है, मतलब सिस्टमैटिक रिव्यू है. तो इसकी एक दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू शो यू कि हमारे पास ये जो सिस्टमैटिक रिव्यूज हम कर रहे हैं, यू कैन लाइक सी द टाइटल. इसका हमारे पास टाइटल है, फिर आप इसके ऑथर्स देख ले, उसमें एक आपको कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर नजर आ रहा होगा. उमर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में आपको नजर आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है, ये एक रिव्यू आर्टिकल है, हम इसको जस्ट एज एन एग्जांपल स्टेप्स देख रहे हैं. ठीक है, पहले आपने टाइटल देख लिया, अब उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट है. एब्स्ट्रैक्ट में आप यू कैन सी द एब्स्ट्रैक्ट एंड देन उनकी नीचे उसके साथ उन्होंने मेथोडोलॉजी मेंशन की हुई है, राइट. सो एब्स्ट्रैक्ट में उन्होंने आपको लाइक दे हैव क्लियरली से कि वो डिटेक्ट करना चाह रहे थे, एनालाइज करना चाह रहे थे एंड डिस्कस करना चाह रहे थे जो डिफरेंट ENT मैनिफेस्टेशन है COVID-19 निमोनिया में, राइट. फिर उन्होंने उसके बाद मेथोडोलॉजीज में सारे डेटाबेसेस अपने मेंशन कर दिए हैं कि उन्होंने मेडलाइन से और जितने भी जो कुछ उन्होंने सर्च किया या जो प्रोटोकॉल फॉलो किया, दे हैव मेंशन्ड अप दिस इज द मेथोडोलॉजी फॉर द सिस्टमैटिक रिव्यू. यहाँ आपने ये मेंशन करना होता है कि मैंने कौन सा डेटाबेस यूज किया, कौन सा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या कोई टेस्ट मैंने अप्लाई किया. मतलब सब कुछ करने के बाद आखिर में जो गाइडलाइंस या जो रूल्स आपने फॉलो की होती है, इसकी मेथोडोलॉजी में आप ये लिखते हैं. यूजुअली जब हम कोई नॉर्मल स्टडी करते हैं ऑब्जर्वेशनल, उस ऑब्जर्वेशनल स्टडी में हम ये लिख रहे होते हैं केस कंट्रोल स्टडी या कोई ऑब्जर्वेशनल स्टडी, उसमें हम लिख रहे होते हैं फॉर एग्जांपल आपने कोई इंटरवेंशन की तो आप वो मेंशन करते हैं, या कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपकी मेथोडोलॉजी में ये होता है कि हमने ये चीज वी हैव, हमारे पास इतना कोहॉर्ट था पेशेंट का, हमने ये इफेक्ट देखा, राइट. या कोई इंटरवेंशन थी तो हमने ये इंटरवेंशन की. यहाँ आपने ये मेथोडोलॉजी मेंशन करनी है कि हमने सर्च परफॉर्म की इन द डेटाबेसेस लाइक पबमेड, वेब ऑफ साइंस,
मेडलाइन, कॉकरेन लाइब्रेरी या कुछ आपने यूज किया है और फिर उसके बाद हमने उसको ड्राफ्ट किया, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये नजर आ रहा होगा, उन्होंने जो फाइंड आउट किया डिफरेंट आर्टिकल से, उन्होंने खुद बैठ के ये मैनिफेस्टेशंस नहीं देखी, उन्होंने आर्टिकल्स निकाल के ये सारा ड्राफ्ट किया है। सो दे हैव मेंशन कि उन्होंने सोर थ्रोट कितने सोर थ्रोट, हेडेक, स्मेल और ये नेजल कंजेशन, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन या डिफरेंट जो ईएनटी मैनिफेस्टेशंस थी, तो उन्होंने उन सारी स्टडीज को कंबाइन करके अपना रिव्यू दे दिया पूरी जिधर मतलब अगर ये स्टडी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बैठ के हुई है, तो उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड सब कुछ इकट्ठा करके लाके आपको एक प्लेटफॉर्म में एक प्लेट में लाके आपको सर्व करके दे दिया है कि सोर थ्रोट मैनिफेस्टेशन हो सकती है, चाहे वो कॉमन मैनिफेस्टेशन है या रेयर मैनिफेस्टेशन है, दे हैव ब्रॉट इट टू योर टेबल, राइट, थ्रू दिस सिस्टमैटिक एनालिसिस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में अब आपको नजर आ रहा होगा यू हैव रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन। अब इस रिजल्ट्स में यू कैन सी दे हैव रिटन दैट दे हैव इंक्लूडेड 1773 COVID-19 लेबोरेटरी कंफर्म पॉजिटिव पेशेंट्स। ये सारी स्टडीज में जितने पेशेंट्स थे उनका कंबाइंड नंबर है, राइट। फिर उसकी सबसे कॉमनेस्ट जो मैनिफेस्टेशन थी दैट वाज सोर थ्रोट, जो उन्होंने मेंशन किया 11.3, एंड सिमिलरली बाकी सारी मैनिफेस्टेशंस। और फिर उन्होंने कंक्लूजन में आपको बताया है कि ये मैनिफेस्टेशंस आर नॉट मतलब सिर्फ फीवर और कफ तक ही नहीं है, बल्कि इट कैन बी मोर देन दैट। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द सिस्टमैटिक रिव्यू। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस अब एक 1976 में एक बंदा था जिसने इसको डिफाइन कर दिया, और डिफाइन करके अच्छा काम भी किया और एक बहुत मुश्किल काम भी किया। So meta-analysis refers to a statistical analysis of a large collection of analysis resulting from the individual studies for the purpose of integrating the findings. अब पढ़ने में तो it looks very easy, लेकिन when you do a meta-analysis, it's a very very difficult thing. Meta-analysis actually आप जब meta-analysis करते हैं तो आप हर स्टडी का जो स्टेटिस्टिकल पार्ट है आप उसको भी बड़ा सीरियसली ले रहे होते हैं। हमने इनिशियली कहा था कि दिस इज समथिंग वेरी क्वांटिटेटिव। तो फॉर एग्जांपल अब अगर हम इसी इबोला और वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने इबोला वैक्सीन पर स्टडी की, एक आर्टिकल है जिसमें इबोला वैक्सीनेशन का सेफ्टी प्रोफाइल उन्होंने देखा, एंड दे सेड के फॉर एग्जांपल दिस वैक्सीन इज वेरी मच सेफ। अब सिर्फ ये नहीं है कि आप क्वालिटेटिवली इसको मेंशन, सिस्टमैटिक रिव्यू तो ये था कि बस ठीक है आपने मेंशन कर दिया कि इतनी इतनी स्टडीज ने बताया सेफ है, इतनी इतनी स्टडीज ने बताया सेफ नहीं है, लेकिन मेटा एनालिसिस ने हर स्टडी का रिजल्ट स्टेटिस्टिकली वे करना होता है कि कितने % श्योर था या कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना था, कोरिलेशन कितना था, रिग्रेशन कितना था, आखिर में सबको कंबाइन करके, वो जैसे हमने इनिशियली कुक बुक की बात की थी, तो मेटा एनालिसिस आपको हर चीज का ऑप्टिमम बताएगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर ये, ऑप्टिमम इंग्रेडिएंट्स ये, ऑप्टिमम बेकिंग टाइम ये, ऑप्टिमम मतलब आपको टॉप टू एवरीथिंग इंतहाई स्टेटिस्टिकल, हर चीज को स्टेटिस्टिक्स में रैप करके मेटा एनालिसिस आपको बताता है। सो मेटा एनालिसिस सिस्टमैटिक रिव्यू से भी एक स्टेप अहेड है, यू कैन से। सो दिस इज वेरी मच समथिंग वेरी मच क्वांटिटेटिव। अच्छा, अब जब आप क्वांटिटेटिव डाटा एनालाइज कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपको ये देखना होता है कि आपका डाटा होमोजेनस है कि हेट्रोजेनस है। यूजुअली आपका डाटा हेट्रोजेनस होता है, क्योंकि आप कहीं आपका पेशेंट एक जैसा होगा, कहीं दूसरी जैसा होगा, हर बंदे ने तो कोई आरसीटी नहीं की होगी, किसी ने नॉन रैंडमाइज टेस्ट भी किया होगा, मे बी किसी ने कोई और रिसर्च स्ट्रेटेजी यूज की होगी। तो जब आप ये सारा डाटा कंबाइन करके एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे होते हैं तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। इसमें से कुछ जो है वो हमारे पास रैंडम इफेक्ट मॉडल है, कुछ हमारे पास फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल्स हैं। फिर आप ये मॉडल्स, ये असल में स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, ये अप्लाई करके यू डू अ मेटा एनालिसिस, और आखिर में आपका अपना बाय प्रोडक्ट आकर आपको बता रहा होता है कि नाउ दिस इज द रिजल्ट। सो मेटा एनालिसिस और सिस्टमैटिक रिव्यू में स्टेप्स बाकी सेम है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स जो है वो बड़ी डिफरेंट है। मेटा एनालिसिस थोड़ा सुपीरियर वी कैन से ऑन, मतलब अगर आप जज करके कहना चाहते हैं तो दैट इज समथिंग वेरी मच सुपीरियर। I actually had a video in my presentation which I added early in the morning on meta analysis. वो खैर है, I'll share it with Umar, और वो आपको आपके जो आपकी क्लास ग्रुप्स है वहां पर आपको फ्लोट कर देंगे, so that will also make meta analysis very simple for you.
here we only discussed it verbally ज्यादा because इसको जो प्रेजेंटेशन कल मैंने दी थी उसमें वो मेटा एनालिसिस वाली वीडियो एक्चुअली है नहीं. Here we have an example for the मेटा एनालिसिस आर्टिकल. ये जो अभी डिस्प्ले हुआ था, उमर if you can do the back slide, 2 स्लाइड्स पीछे कर ले प्लीज. हमारे पास ये जो आर्टिकल है, हाँ एक और स्लाइड पीछे कर ले. अच्छा, मेटा एनालिसिस हमारे पास है ऑफ द मोर्टेलिटी रिस्क एसोसिएटेड विद MRSA कंपेयर टू द MSSA बैक्टीरिया. ये मेथिसिलिन रेजिस्टेंट और सेंसिटिव बैक्टीरिया की हमारे पास बात हो रही है. सो दिस इज मेटा एनालिसिस. ये टाइटल है, दिस इज अ सैंपल मेटा एनालिसिस. ठीक है, अब इसको देखते हैं कि इन्होंने मतलब किया, हाउ स्टैटिस्टिक्स हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल हियर. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अच्छा, इसके जो रिजल्ट्स है अब आप उसमें देखें. ये एक पैराग्राफ है, ये उन्हीं के रिजल्ट्स हैं, मैंने कॉपी पेस्ट किए हैं. आई हैव नॉट एडेड माय ओन वर्ड्स. ये इसलिए भी थोड़ी बिजी स्लाइड आपको लग रही होगी. They have written the odds ratio in the meta-analysis ranged mostly from 1.78 to 2.92. अब ये odds ratio इंडिविजुअल स्टडीज का उठा के सबको कंबाइन करके एक प्लेटफॉर्म पे लाके उन्होंने एक रेंज दी है. ठीक है, विच इज अ वेरी वेरी बिग थिंग. और ऑड्स रेशियो कैलकुलेट करना एक स्टडी के लिए, और फिर जितनी स्टडीज उन्होंने इंक्लूड करनी है सारी स्टडीज के लिए. सो दिस इज अ थिंग. देन फिर उसके बाद उन्होंने वो जितने भी एक स्कोरिंग या जो रिलेटिव रिस्क कैलकुलेट करना होता है, सारे जो जितने भी हमारे पास पैरामीटर्स थे इंडिविजुअल स्टडीज पर अप्लाई किए, फिर पूल्ड रिजल्ट आपको दिया. राइट, सो दिस पूल्ड रिजल्ट एक्चुअली इज द मेटा एनालिसिस. नेक्स्ट स्लाइड करें. ये जो आपको फिगर नजर आ रहा है बेसिकली MRSA है, MSSA है, फिर उसके बाद रिस्क रेशो है, और फिर उसके बाद उन्होंने एक प्लॉट बनाया हुआ है. दिस इज द फॉरेस्ट प्लॉट. ये वो जो कॉक्रेन का मोनोग्राम था उसमें ये फॉरेस्ट प्लॉट बना था. तो उसमें इसमें फिर उन्होंने आपको इलेबोरेट करके बताया है ये जो डायमंड शेप है, दिस इज क्लोजर, ये ज्यादा फोकस्ड स्टडी है. फिर ये जो स्क्वायर शेप है, मतलब वो जो हम फोकस लाइट और स्प्रेड लाइट की बात कर रहे थे, तो दैट इज अप्लाइड बेसिकली हियर. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल है, मेटा एनालिसिस ऑफ द इंट्राडर्मल वर्सेस इंट्रामस्कुलर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इम्यूनोजेनिसिटी एंड एडवर्स इवेंट्स. हमारे पास सेम उसी तरह का एक टॉपिक है जैसे हम इबोला वैक्सीन की बात कर रहे थे. तो ये भी हमारे पास इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं. सेफ्टी प्रोफाइल बेसिकली देखा है. तो ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस या मेटा एनालिसिस आप करते हैं, ये यूजुअली इसी किस्म की स्टडीज पे अप्लाई होता है. अब यहाँ पर एडवर्स इवेंट्स आप देख रहे हैं, आप सेफ्टी प्रोफाइल देख रहे हैं, आपको क्वांटिफाई करना है क्योंकि आप एक चीज ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि इसका रिलेटिव रिस्क कितना है, कितने परसेंट मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि एडवर्स रिएक्शन नहीं होगा, या कितने परसेंट मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये एडवर्स रिएक्शन होगा. तो ये इस किस्म की स्टडीज के लिए दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप उनको मेटा एनालिसिस पे लेके जाएं. जो ऐसे कॉमन चीजें होती हैं उसमें आपको सिस्टमेटिक रिव्यू काम चल जाता है. फॉर एग्जांपल आई रोट एक रिव्यू आर्टिकल ऑन स्लीप डिसऑर्डर्स और उनकी मैनेजमेंट पे. अब स्लीप डिसऑर्डर्स और मैनेजमेंट ऐसा टॉपिक है जिसपे आपको मेटा एनालिसिस आपको नहीं करना. आपने ना कोई सेफ्टी प्रोफाइल आप देख रहे हैं, ना मैं कोई रिस्क कैलकुलेट करना चाह रही हूँ. आई एम ओनली ट्राइंग टू बी क्वालिटेटिव. तो मैंने जस्ट सिस्टमेटिक रिव्यू किया और मैंने मेटा एनालिसिस नहीं किया. मुझे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जरूरत ही नहीं, मतलब आई डिडंट वांट, आई वाज नॉट ऑप्टिंग दैट लेवल. राइट, सो ये जो अभी स्लाइड डिस्प्ले हुई है, दिस इज गोइंग टू सम इट अप. टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर. सो सारी स्टडीज कंबाइन करके जब आप सिस्टमेटिक रिव्यू बनाते हैं, ये सिस्टमेटिक रिव्यू भी बहुत कुछ अचीव कर सकता है. और हम जब एज अ टीम काम करते हैं, वी कैन ऑल्सो गो फर्दर एंड फर्दर. क्योंकि एक बंदा हो सकता है मुझे अकेले में काम करने में 1 साल लग जाए एक रिव्यू लिखने में, लेकिन अगर मैं एज अ टीम काम करूं और मेरे पास एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी हो, मेरे पास स्टेटिस्टिक्स का एक्सपर्ट बंदा भी हो, तो आई कैन डू इट क्विकली एंड आई कैन डू इट बेटर. सिर्फ क्विकली की भी बात नहीं होती, डूइंग इट बेटर एंड डूइंग इट सही तरीके से इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. तो whenever you plan to do a systematic review, make sure आप इसको एक टीम वर्क की तरह लेके चलें. आपको बड़े सारे फायदे ऐसे होंगे कि इंडिपेंडेंट रिव्यूअर्स भी आपको बाहर से कोई नहीं चाहिए होगा, आप खुद ही आपस में यू कैन मैनेज इट. और टीम वर्क आपको मतलब इट्स नॉट जस्ट डूइंग इट,
I guess doing it with fun is very much important. Doing it while enjoying is very much important. And like you have to make it a memorable experience, not just doing it for the sake of doing it. So I guess we have हमारा aim ये था at the start of the session that we have to climb only one step today. हमें सिर्फ ये पता चल जाए कि systematic review और meta analysis है क्या, basic steps. क्योंकि obviously this is not possible कि हम just in the matter of hours will be able. I call myself learner. मैं भी Dr. Iqbal, I don't know if he's here. He was busy with OPD. So मैं सर से सीखती हूँ, सर ने अपने मेंटर से सीखा होगा. And इसी तरह step by step together we can learn from each other. And I guess one day we'll be इतना eligible enough कि जब हम थोड़ा degree of independence achieve करके खुद भी चीजें कर सकेंगे और अपना कंट्री, अपना प्रोविंस, अपने इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर सकेंगे. तो आई गेस स्टेप 1 पे अगर हमने क्लाइम कर लिया हो, हम ओनली इफ वी हैव लर्नड टू नेम दी स्टेप्स, आई गेस द जॉब वाज, मैं ये समझूंगी कि लाइक आई हैव डन वेल. बाकी वी कैन जो इसके नेटी ग्रिटीज हैं वी कैन डिस्कस इन द चैट बॉक्स या थ्रू ईमेल. I will mention, yeah, I'll send my email to you. बल्कि अभी भी मैं chat box में I guess I can type it. If anyone has any query, अभी इधर कोई अगर question है तो we can answer that as well. And if not, so I am sending you my email in the chat box and we can discuss it there as well. Dr. Shumaila, thank you so much. That was a very insightful presentation and very enlightening and educational indeed. I'm sure everyone had quite a lot to learn. You addressed the important points of what systematic review and meta-analysis are, why they are conducted, and how we can conduct them in a step-by-step manner for efficiency. We will now open the floor for a question-answer session. Please raise your hand if you want to speak out your questions. Alternatively, you can leave the questions in the chat box and they will be addressed. We have a few questions in the chat box. If any of the participants have any queries or would like an explanation for any of the presented slides, kindly let Ma'am Shumaila know. No, किसी ने क्वेश्चन पूछा है, is there any limit to the number of authors? तो नंबर ऑफ ऑथर्स की ऐसी कोई मतलब अगर आपकी अपनी कोई रिक्वायरमेंट है, ऐसे होता है रिव्यू आर्टिकल जब आप लिख रहे होते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा सिस्टमेटिक रिव्यू, बल्कि कोई भी आर्टिकल अगर होता है फर्स्ट नेम लिखा होता है और उसके आगे दे राइट एट ऑल, ET एट एंड ऑल. तो दे हैव अ लॉट ऑफ ऑथर्स. तो अब ऐसे भी नहीं है कि आप इसको डजन्स ऑफ भी नहीं हो सकते, लेकिन वी हैव टू कीप इट मतलब इतना आप रखें जितना सारे कंट्रीब्यूट भी कर रहे हो एंड मतलब all of them get their due credit as well. They are contributing as well and अगर आप किसी का नाम लिख भी रहे हैं तो they have done something. मतलब ऐसे नहीं है कि आप सबका नाम लिखने को तो हम बहुत कुछ लिख सकते हैं. We cannot make it dozens, but we can, yes, we can keep it a same number. ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने लिखना है या 2 ने लिखना है, 8 बंदे भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं. ये जो जितने भी बड़े बड़े जर्नल्स होते हैं they have a lot of authors. मतलब इवन 15-16 ऑथर्स भी होते हैं, लेकिन दे हैव सम कंट्रीब्यूशन टू इट. और वो फिर कोई स्टैंडर्ड चीज भी होती है, लाइक नॉट फॉर द सेक ऑफ एनी कोई छोटी सी या कोई मिनिमल चीज के लिए नहीं होता, फॉर अ वेरी ग्रैंड थिंग ऐसा हो सकता है. अच्छा, ऐसे भी होते हैं, आपने RCTs में देखा होगा या ऐसे एक्सपेरिमेंटल स्टडीज जो हमारी होती हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में कंडक्ट होती हैं और फिर उनको कंक्लूड करके मतलब उनके डिफरेंट पायलट प्रोजेक्ट्स होते हैं. हर प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के लिए दे have a whole crew. तो आपको फिर उन सबको क्रेडिट करना होता है. तो RCTs में यूजुअली ये होता है, they have a lot of authors, क्योंकि वो सारे डिफरेंट कंट्रीज में मल्टी सेंटर ट्रायल्स जिसको कहते हैं या मल्टी सेंटर स्टडीज, तो उसका जो ऑथरशिप होती है वो बड़ी ज्यादा होती है.
तो ये डिपेंड करता है सिस्टमेटिक रिव्यू में यू डू नॉट हैव, जैसे नॉर्मल आर्टिकल्स पे अप्लाई होता है, सेम इज फॉर द मेटा एनालिसिस एंड सेम इज फॉर द सिस्टमेटिक रिव्यू। इसका कोई अलग से प्री डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है। Thank you, ma'am. Then Kashif Khan has another question. He's asking if we can include systematic review articles in our meta or systematic analysis, or it depends on inclusion and exclusion criteria. नहीं, सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस दोनों के स्टेप्स आर द सेम। वी ओनली सेड कि जो आपका डिफरेंस है वो स्टेटिस्टिकल लेवल पर आ रहा है। अब ये तो डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है और आप स्टडी क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी ड्रग का एडवर्स रिएक्शन देख रहे हैं तो यू विल डेफिनेटली डू अ मेटा एनालिसिस। सारे स्टेप सेम है, आपका सिर्फ स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के लेवल पे आके आपको उसको वो जो आई गेस वो वीडियो शायद आपको थोड़ा सा हेल्प आउट कर देगी, उमर विल शेयर इट विद यू। लेकिन जब आप एडवर्स रिएक्शन, फॉर एग्जांपल एडवर्स रिएक्शन में सिर्फ ये तो नहीं होता ना, आप एक स्टडी कर रहे हैं एडवर्स रिएक्शन के लिए, ये तो इन्यूमरेट करना नहीं है ना कि ड्रग का एडवर्स रिएक्शन ये है नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, वो जो हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते थे। आपने ये भी बताना होता है कि सेफ्टी प्रोफाइल कितने परसेंट चांस है कि एक एडवर्स रिएक्शन हो सकता है। तो ऐसी चीज जहां आपको क्वांटिफाई करना है उधर आप मेटा एनालिसिस करते हैं, और जहां आपको क्वालिटेटिव चीज चाहिए आप सिस्टमेटिक रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है अप्लाई तो दोनों पे हो रहा है, बाकी सारे स्टेप्स तो सेम थे, सिर्फ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वाज डिफरेंट। मतलब आपने अपने टॉपिक को देखते हुए ये डिसाइड करना है कि इस पे क्या चीज फिट आ रही है, दैट्स इट। बाकी तो ऑल द स्टेप्स आर द सेम, ओनली सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा स्टेप आप कह सकते हैं मेटा एनालिसिस में आ जाता है, एक्स्ट्रा या थोड़ा रिफाइनिंग स्टेप वी कैन से। ऐसा नहीं है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बाकी स्टडीज में नहीं होती, हर जगह स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, हम एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशनल स्टडी में भी हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस तो कहीं ना कहीं परसेंटेजेस ही निकाल रहे होते हैं, लेकिन कर तो रहे होते हैं ना, तो वो भी एनालिसिस है, लेकिन यहाँ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस होती है। Thank you, Dr. Shumaila, for an excellent presentation. Despite all the glitches and the problems which arose, but you addressed them very well. Thank you for your time and for your patience. Like you said, that meta-analysis is a very powerful tool for generating evidence from multiple studies. And on that basis, we make an informed decision. But like you said in your presentation, that it needs very careful planning and execution. And it's not just one-man job. It is a team effort. Multiple people are involved in it, and it has to be done very diligently, and it's a time-consuming process. Thank you very much once again for your time and for an excellent presentation. And it was a very interactive session. You made a very difficult topic very easy for our students to understand it. And also for me, I learned quite new techniques also. So once again, thanks. Thank you very much, ma'am. It was a pleasure having all of you. And obviously these technical glitches were, ये तो सबसे I like fear the most ये सारी चीजें. But yes, at least I am very happy that the session got completed. My ultimate fear is always these technical glitches, जो कि KMC Con में भी हमारे साथ होता था, फिर उसके बाद वहाँ हालांकि फेस टू फेस चीजें थी, बट द ऑडियो विजुअल वुड गेट सम ग्लिचेस एंड ऑन एंड ऑफ, एंड ये तो आई डोंट नो, लेकिन आई एम जस्ट ग्लैड वी कंप्लीटेड इट, एंड अगर एक दो वर्ड्स भी किसी ने सीख लिए हैं, सो आई गेस दिस इज द टारगेट वेल अचीव्ड फॉर मी. Once again, thank you, Dr. Shumaila, and thank you all for tuning in. As I had mentioned earlier, I would like to reiterate that the next session, the next webinar that we will hold is the clinical audit one, and it's dated for 8th August, tomorrow. And I press all of those curious about this unexplored topic to join the session tomorrow. Lastly, but definitely not the least, I would like you all to know that the dates for our KMC IRC International Research Conference have been finalized as 2nd and 3rd October. Do register yourself and submit the abstracts for your researches. 31st August 2024 is the last date. Once again,
Thank you all. Thank you, Dr. Shumaila. Thank you, team Thank you, Umar, CRC. for being such a good SRC. host and moderator. Yes, ma'am. And I would like to give a special thanks to the Director of Medical Education of PGMI, Dr. Naila Hadi, and we look forward to seeing all the other participants joining the upcoming sessions. Once again, this is your moderator signing off. Have a great day and Allah Hafiz.